Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, so let's start our today's class. What we have completed yesterday? हमने कल क्या कंप्लीट किया था? Different type biological welfare agents. Yes, different types of biological warfare agents and Chemical warfare. chemical agents. And last topic was? What was the last topic? After completion of chemical warfare agents? Versus role. Yes, our role at that time or during the situation of war, what we have to do. So we have completed all these things. So let's do a quick revision. Okay. First of all, Samsung SM, please rename yourself. Okay. And Harsh, we have one new student, that is Harsh. Harsh, we are right now we have completed the chapter number 13, that is infection and safety. Right now, from today onwards, we are going to start new chapter, that is medication calculation or medication administration. If you feel any doubt in between, you can ask me anytime. Okay, Okay, feel thank free you. to ask me. Yeah, okay. एंड प्लीज ये जो सैमसंग जो भी है डिवाइस का नेम है, प्लीज आप अपना नेम लिख दो, रीनेम योरसेल्फ. काइंडली टेल मी योर नेम. हु आर यू? Can you hear me? Please rename yourself. Okay, so let's start our today's class. Let's do a quick revision of our previous class. Yesterday we have started the remaining biological warfare agent, that is plague. Plague, what is the vector for plague? वेक्टर कौन सा है? प्लेग कैसे स्प्रेड होगा? Rodents and fleas. यस, जो बैक्टीरिया होता है प्लेग का, दैट इज यर्सीनिया पेस्टिस, वो रोडेंट्स में और फ्लीज में प्रेजेंट होता है, और वो रोडेंट्स और फ्लीज आपको बाइट करेंगे तो आपको प्लेग हो सकता है. देन अदर वेज ऑफ ट्रांसमिशन आर Person to person connected. ओके, पर्सन टू पर्सन हो जाएगा. देन अगर आप कंटामिनेटेड मीट खा, Meat. यस, कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड मीट, उससे भी प्लेग हो सकता है. और इन्फेक्टेड एनिमल्स है, ऑलरेडी इन्फेक्टेड है ये बैक्टीरिया से, अगर वो एनिमल्स को आप हैंडल करोगे तो भी आपको प्लेग हो जाएगा. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लेग? 3. यस, 3. विच आर दे? हाउ मेनी टाइप्स? 3. एंड विच आर दे? Bubonic, pneumonic, and septicemic. Yes, bubonic plague, pneumonic plague, and septicemic plague. Septicemic is most deadly type of plague. It is very fatal, and bubonic plague is very common. The symptoms usually begins 1 to 3 days after person is infected by the bacteria. And what are the sign and symptoms of plague? Fever. Fever. Lymph node swelling. Yes, lymph node swelling. Chest pain. Chest pain. Then productive cough. Yes, productive cough, and sometimes person experiences hemoptysis. What is hemoptysis, new student? Bleeding, sputum. Yes, blood in the sputum. Yes, so that is called as hemoptysis. Majorly, this bacteria affects the lung of an individual. So, जो सारे symptoms है वो lungs related, respiratory system related है. जैसे जैसे disease progress करेगा वैसे symptoms कैसे होंगे, वो भी progress होंगे, और patient क्या experience करेगा, कौन से symptoms देखने को मिलेंगे patient में? Cyanosis. Stridor. Yes, stridor, cyanosis. What is stridor?
स्ट्राइडर क्या है? We have already completed this in health assessment. Sound, Previous chapter. Yes. So what is this stridor? sound अच्छा Abnormal lung sound. That is called as stridor. कैसा साउंड होता है वो आप ऑडियो क्लिप में सुन सकते हो, कौन सी कंडीशंस में देखने को मिलता है वो भी आपको वहां से पता चलेगा। तो स्ट्राइडर क्या है? दिस इज एन एबनॉर्मल लंग साउंड। नॉर्मल लंग साउंड नहीं है, ये एबनॉर्मल लंग साउंड है, जो बहुत ही म्यूकस प्लग अंदर जमा हो जाए तब ऐसे जब भी पेशेंट इनहेल एक्सेल करेगा तो स्ट्राइडर साउंड क्रिएट होगा। सो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्राइडर। डिज्निया, दैट इज shortness of डिज्निया मीन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। और रेस्पिरेटरी फेलियर से पेशेंट की डेथ हो जाएगी। शॉक भी होगा, कौन सा शॉक? septic सेप्टिक शॉक। व्हेनेवर देयर इज इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरिया उससे इन्फेक्शन होगा पेशेंट को तो पेशेंट को सेप्टिक शॉक ही होगा, पहले सेप्टिसेमिया देन सेप्टिक शॉक, और पेशेंट को ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो दीज आर द एडवांस साइन एंड सिम्टम्स, जब डिजीज कंडीशन प्रोग्रेस हो जाए तब। एंटीबायोटिक्स रिलेटेड क्या पॉइंट था? administer immediately यस, अगर आपको इजीली अर्ली डायग्नोस कर लो और आप एंटीबायोटिक्स दोगे पेशेंट को तभी वो असर कर पाएगी। लेट आप डायग्नोस करोगे, डिजीज ऑलरेडी प्रोग्रेस हो गया, फिर आप एंटीबायोटिक्स दोगे तो वो असर नहीं करेगी। सो इट इज ओनली इफेक्टिव व्हेन यू एडमिनिस्टर इमीडिएटली। कौन सी एंटीबायोटिक्स दे सकते हो आप? Doxycycline, यस, gentamicin स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन। यस, इसमें से कोई भी आप दे सकते हो। इज देयर एनी वैक्सीन फॉर प्लेग? yes, Yes, there is a vaccine available for plague. Yes. Next biological warfare agent, that is tularemia. What is that? It is an infectious disease caused by Bacillus francisella tularensis. बैक्टीरिया का नाम और ऑर्गेनिज्म, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव नेम्स ऑफ ट्यूलेरेमिया? rabbit yes, रैबिट फीवर एंड फ्लाई फीवर। कैसे ट्रांसमिट होता है ट्यूलेरेमिया? ticks and deer flies टिक्स एंड डियर फ्लाइज, और जो भी एनिमल, जो टिक्स होती है ये बैक्टीरिया टिक्स के अंदर होते हैं। ये टिक्स अगर एनिमल को बाइट करेगी तो वो एनिमल भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, और आप उस एनिमल के कांटेक्ट में आओगे तो आपको भी होगा, और डायरेक्टली ये टिक्स आपको भी बाइट कर ले सो आपको भी हो जाएगा। सो इट इज ट्रांसमिटेड बाय टिक्स एंड डियर फ्लाइज। और वो अगर शायद किसी एनिमल को भी इन्फेक्ट कर दे तो वो इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में आने से भी आपको हो सकता है। व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स? फीवर, हेडेक, lymph node yes. enlargement कौन से लिम्फ नोड एनलार्ज होगी? localized लोकलाइज, जहां पर बाइट किया है या जहां से बैक्टीरिया इन्वेड हुए हैं वहां की लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाएगी। देन eye infection, infection eye ulceration or pneumonia. Yes. What are the antibiotics we can give to the patient? Which type of antibiotics? streptomycin, Gentamicin, doxycycline. doxycycline, ciprofloxacin. Is there any vaccine available for tularemia? yes, Yes, there is a vaccine. And the good thing is, अगर एक बार किसी पेशेंट को ट्यूलेरेमिया इन्फेक्शन हो जाए और वो पर्सन रिकवर कर जाए, उसमें से हम एंटीबायोटिक देंगे, पेशेंट रिकवर भी हो जाएगा, तो उसकी बॉडी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी क्रिएट कर देगी। फिर कभी भी उसको ये बैक्टीरिया उसके बॉडी में आएंगे तो उसकी बॉडी उसको डिफेंड करेगी, जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई है वो बैक्टीरिया को डिफेंड कर देगी। सो एक बार ट्यूलेरेमिया होने से और पेशेंट रिकवर हो जाए उसमें से तो उसकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी उसकी बॉडी में। नेक्स्ट बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट इज हेमरेजिक फीवर। व्हाट इज दैट? What is that hemorrhagic fever? Caused by virus. virus nali It is caused by several virus. बहुत सारे viruses की वजह से hemorrhagic fever होता है। And what are the vectors for this? Vector क्या है इसके? कौन सी चीज से ये मॉस्किटोज एंड
rodents, yes, ये जो वायरसेस है, मार्बर्ग, लैसा, देन ज्यूनिन एंड इबोला, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस है जिसकी वजह से हेमरेजिक फीवर होता है। और ये वायरसेस रोडेंट्स और मॉस्किटो में प्रेजेंट होते हैं, और जब वो किसी को भी बाइट करेंगे तो वो पर्सन को हो जाएगा। कैन इट गेट ट्रांसमिटेड बाय पर्सन टू पर्सन? Yes. हाउ? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट with person to person? Hmm. Yes or Not no? Not direct contact. So कैसे होगा? Body fluids. बॉडी फ्लूइड्स की वजह से। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी फ्लूइड से कांटेक्ट में आप आओगे तो आपको हो जाएगा, नॉट विद द पर्सन बट देयर बॉडी फ्लूइड्स, सो डायरेक्टली ट्रांसमिटेड वाया द बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। साइन एंड सिम्टम्स क्या है इसके? Conjunctivitis, headache, fever, nausea, यस, vomiting, कंजक्टिवाइटिस, hypotension. ओके, एंड द मेन थिंग हेमरेजिक फीवर, सो देयर इज अ हेमरेज, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो हेमरेज ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, एंड ड्यू टू दैट सीवियर ब्लीडिंग हो जाएगा, सो उससे ऑर्गन फेलियर हो जाएगा और पेशेंट की डेथ हो सकती है। सो साइन एंड सिम्टम्स आर फीवर, हेडेक, मलेज, कंजक्टिवाइटिस, नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन, हेमरेज ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एंड ऑर्गन फेलियर। अगर हेमरेज होगा टिश्यूज का और ऑर्गन्स का, सो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग्स देखने को मिलेगी इसमें, साइन एंड सिम्टम्स में। पेशेंट को मेलिना, हिमेचूरिया, हिमेटेमेसिस, हिमोप्टिसिस ऐसा देखने को मिलेगा। यस और नो? Yes. यस, हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, सो वो ब्लड कहीं से तो बाहर निकलेगा। अगर जीआई ब्लीडिंग है तो इन टर्म, अगर अपर जीआई ब्लीडिंग है तो हिमेटेमेसिस के फॉर्म में वो बाहर आएगा। लोअर जीआई ट्रैक में ब्लीडिंग है तो मेलिना के फॉर्म में वो बाहर आएगा। तो जब भी इंटरनल ब्लीडिंग होते हैं, सो देयर आर डिफरेंट रूट्स की जहां से वो ब्लड बाहर निकलता है, एंड दिस आर द साइंस कि पता चले कि देयर इज इंटरनल ब्लीडिंग। सो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे भी वर्ड्स दिए गए हो तो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, बट वी हैव स्टडीड कि हेमरेज होते हैं टिश्यूज में और ऑर्गन्स में, हेमरेज होता है तो वो ब्लड तो कहीं से तो निकलेगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज, दे विल आस्क यू सच काइंड ऑफ ट्रिकी क्वेश्चंस। वो ट्रिकी साइन एंड सिम्टम्स भी लिखे होंगे, सो आपको आइडेंटिफाई करना है। इज देयर एनी ट्रीटमेंट फॉर हेमरेजिक फीवर? Symptomatic treatment apane. यस, देयर इज ओनली अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो सिम्टम्स है वो ही ट्रीट कर सकते हैं। डायरेक्टली जो डिजीज कंडीशन है लाइक वो हम ट्रीट नहीं कर सकते, देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर दिस। नेक्स्ट इज इबोला वायरस डिजीज। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ इबोला वायरस डिजीज? hemorrhagic fever. इबोला हेमरेजिक Ebola फीवर, hemorrhagic fever. स्पेसिफिक इबोला से ही हुआ है। हेमरेजिक फीवर में बहुत सारे वायरस है जिसकी वजह से हेमरेजिक फीवर होता है, बट ये सिर्फ इबोला की वजह से हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इबोला हेमरेजिक फीवर। उससे भी सेम हेमरेज होता है। फर्स्ट केस कब आया था? सो 1976 में आया था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। देन उसके आउटब्रेक सारे अफ्रीका में देखने को मिले थे, और दूसरी अदर कंट्रीज में भी देखने को मिले थे। कॉमनली वो अफ्रीका के जो स्टेट्स और वो है, अफ्रीका में ये ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। इबोला वायरस का होस्ट या फिर वेक्टर कौन है ये एग्जैक्टली नहीं पता, बट इट इज बिलीव्ड कि वो किससे स्प्रेड होता है? Bat. बैट से। अगर जो बैट इन्फेक्टेड है वो बैट अगर आपको बाइट कर ले तो भी होगा, और इफ अ पर्सन ईट्स द अनकुक्ड बैट, जो पूरा अच्छे से कुक नहीं हुआ वैसा बैट खाने से भी इबोला स्प्रेड हो सकता है, इबोला वायरस। ओके, देन दूसरी कौन सी टाइप से वो स्प्रेड हो सकता है? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ पर्सन, जो पर्सन इन्फेक्टेड है उसके जो सारे ऑब्जेक्ट्स है, लाइक क्लोथ्स, उसकी बेडिंग्स, उसका ब्रश, एनीथिंग, जो भी ऑब्जेक्ट्स पेशेंट यूज कर रहा है वो अगर हम टच करेंगे तो उससे भी होगा। सिरिंज और नीडल से भी होगा, बिकॉज वो शार्प है, वो पेशेंट के फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आए हैं। नीडल्स वो सारी ब्लड वाली है, अगर वो पेशेंट की नीडल से आपको नीडल स्टिक इंजरी हो जाए तो भी आपको हो सकता है इबोला हेमरेजिक फीवर, और आपको इबोला वायरस डिजीज हो सकता है। उसके सिम्टम्स कब अपीयर होंगे? 21 days. 20
यस 2 to 21 days आफ्टर एक्सपोजर कोई भी पर्सन इबोला वायरस के कांटेक्ट में आएगा उससे 2 या 21 दिन के बाद उसको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. सो पेशेंट आपके पास आता है हॉस्पिटल में. सो व्हाइल डूइंग असेसमेंट आप पेशेंट से क्या क्वेश्चन करोगे? पेशेंट को क्या पूछोगे आप? 21 દિવસમાં તમે કોઈ જગ્યાએ નાઇજીરિયા અને ગુનિયા આ બધી જગ્યાએ ગયા છો? सीरिया यस सीरिया लियोन. यस आप क्वेश्चन पेशेंट को ऐसे क्वेश्चन पूछोगे कि लास्ट 21 डेज में आप कोई ऐसी जगह पर गए हो जहां पर ईवीडी के केसेस बहुत ज्यादा हो, जस्ट लाइक cities of Africa, दुनिया, नाइजीरिया, सीरिया, दिस आर द एग्जांपल्स. सो यहाँ पर कहीं गए हो? इफ यस देन देयर माइट बी चांसेस कि आपको ईवीडी है. फिर आप ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि किसी के कांटेक्ट में आए हो जिसको ऑलरेडी ईवीडी हो, तो पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि वो ईवीडी है? तो आप ऐसे पूछ सकते हो कि आपको इसमें से कोई साइन एंड सिम्टम्स आपको है या आपने किसी को देखा है और जिसके कांटेक्ट में आए हो, तो कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उसके? Diarrhea, vomiting, यस fatigue, weakness. fatigue, weakness. Okay, so fever होगा 100.4 डिग्री फ़ारेनहीट और ग्रेटर, severe headache, muscle pain, weakness, fatigue, diarrhea, vomiting, abdominal pain, and most common sign जो उसका नाम है that is unexplained bleeding और bruising. ब्लीडिंग अचानक से कहीं से भी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है. सो दैट इज द मेन थिंग. इंटरवेंशंस आपको पता चल गया. व्हाइल डूइंग असेसमेंट आपको पता चल गया कि पेशेंट को एग्जैक्टली ईवीडी ही है. सो आप क्या करोगे? व्हाट विल द इंटरवेंशंस यू विल डू? Private room isolated. यस वी विल प्रोवाइड द प्राइवेट रूम, आइसोलेटेड रूम, देन Bathroom. प्राइवेट बाथरूम. यस जो Bathroom. यस जो कमोड भी है वो बेड साइड है और वो कवर्ड होना चाहिए, नॉट ओपन. डोर्स भी क्लोज रखेंगे. फिर Wear a PP kit. यस पीपी किट यूज करेंगे. सारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो यूएपीबी है वो भी पीपी किट पहनेंगे. देन जितने Limited भी लोग यस entering healthcare worker पहले तो room. हेल्थ केयर वर्कर्स की एंट्री लिमिट कर देंगे, ज्यादा लोगों को अलाउ नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल 1 या 2 जो नर्सेस है जो केयर कर रही है वो ही जा सकते हैं, नॉट अननेसेसरीली विजिट इन द क्लाइंट रूम. सो वो हम लिमिट कर देंगे. और लिमिट करने के बाद क्या करेंगे? जो भी अंदर जा रहे हैं उनका List out Donation. करें. यस लिस्ट करेंगे कि ये लोग थे जो अंदर गए थे, तो हमारे पास एक डेटा रहे कि इतने लोग पेशेंट के कांटेक्ट में आए थे. फिर पेशेंट को हेमरेज है तो आप क्या करोगे? देयर इज अ ब्लीडिंग रिस्क. सो Necessary test करवाना. Avoid यस करवाना investigation. अननेसेसरी पंचर नहीं करेंगे पेशेंट को बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग. सो कैन वी टेक ब्लीडिंग प्रिकॉशंस इन पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम ईवीडी? Yes. यस ये पेशेंट को हेमरेज का प्रॉब्लम है, सो हम ब्लीडिंग प्रिकॉशंस ले सकते हैं. सारे जो ब्लीडिंग प्रिकॉशंस है, कौन से ब्लीडिंग प्रिकॉशंस थे? प्लीज लिस्ट इट आउट. पेशेंट को आप क्या एडवाइस करोगे? डेंगू में भी ब्लीडिंग प्रिकॉशंस लेते हैं हम बिकॉज उसमें भी प्लेटलेट स्लो हो जाती है. Use electric laser. यस यूज इलेक्ट्रिक रेजर और ट्रिमर यूज करो. डोंट शेव. देन सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश. फॉल रिस्क प्रिवेंशन, अगर पेशेंट गिर जाएगा तो भी ब्लीडिंग होगा. अवॉइड अननेसेसरी पंचर. Necessary. यस सो दिस आर द ब्लीडिंग प्रिकॉशंस. कितने प्रिकॉशंस है एंकलेक्स में? 2. विचार दे. Fall precaution and bleeding Fall, precaution. bleeding, and neutropenic. ओके बस इतने ही है. Fall, bleeding, neutropenic. न्यूट्रोपेनिक का दूसरा नाम क्या है? Infection थी provide करवाना. Infection precautions. So there is fall prevention, bleeding precautions, neutropenic precaution that is called as infection precaution, and seizure precaution that is also important. Yes. So ये precautions हमें याद रखने हैं कि कौन से पेशेंट में हमें कैसे precautions लेने हैं. तो अब ये सारे precautions याद रखोगे. जो स्टूडेंट्स ने अभी नहीं कवर किया
फ्यूचर में आप ये सारा कवर कर लोगे, बट रिमेंबर दिस थिंग्स, दिस प्रिकॉशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एंक्लिक्स। सो सारे प्रिकॉशंस आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, आप जो भी इंफेक्शन कंट्रोल आपकी ये जो टीम है हॉस्पिटल में, उनको आप इन्फॉर्म करोगे, और पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज को भी आप इन्फॉर्म करोगे कि देयर इज अ केस ऑफ ईवीडी। Then we have seen chemical warfare agents. Chemical warfare agents means instead of using viruses and bacteria, they are using Gas. chemicals to create a mass destructions. War में वो chemicals use करेंगे. So first is sarin. Sarin क्या है? Now toxin gas. Yes, it is highly nerve toxic gas. ये जो गैस है वो बहुत ही न्यूरोटॉक्सिक है। जैसे ही पेशेंट इसके एक्सपोजर में आएगा, ये गैस इनहेल कर देगा, विद इन फ्यू मिनट्स वो पेशेंट की डेथ हो जाएगी, बिकॉज ये सारे बॉडी में पैरालिसिस कर देता है, रेस्पिरेटरी मसल्स भी पैरालाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट ब्रीथ नहीं कर पाएगा और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ये गैस कहाँ से एंटर होता है? सो नॉर्मल इनहेलेशन से होगा। इंस्टेड ऑफ दैट आईज, स्किन, सबसे वो गैस पेशेंट की बॉडी में चला जाएगा। नेक्स्ट केमिकल, दैट इज फॉस्जीन। व्हाट इज दैट फॉस्जीन? फॉस्जीन One क्या type है? of colorless gas. वन टाइप ऑफ कलरलेस गैस। उसका कोई, वो आपको इजीली दिखेगा नहीं, उसका कोई कलर नहीं है, बट नॉर्मली इट इज यूज्ड इन फैक्ट्रीज, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में उसका यूज होता है। सो जो पर्सन वो फैक्ट्री में वर्क करता है, अगर वो हाई कॉन्सेंट्रेशन मीन्स ज्यादा प्रपोर्शन में गैस इनहेल करता है, लॉन्ग टाइम से वहां पर है, सो लॉन्ग टाइम से वो इनहेलेशन कर रहा है, तो उस पर्सन को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, पल्मोनरी एडिमा और डेथ जल्दी हो जाएगी। अगर वो रिलीज हो जाएगा, जस्ट लाइक वो भोपाल गैस ट्रेजेडी में था, वो कंपनी में यूज हो रहा था, पर वो हार्मफुल नहीं था। जैसे ही वो गैस रिलीज हो गया, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। तो जस्ट लाइक फॉस्जिन, फॉस्जिन के फैक्ट्रीज में यूज होता है, जो वहां पर जॉब करते हैं उनको रिस्क ज्यादा है, पर अगर वो रिलीज कर दिया जाएगा तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट इज मस्टर्ड गैस। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट मस्टर्ड गैस? Yellow and brown color gas is odor like Yes. garlic. Yes, it has color and it has odor. So it is brown to yellow to brown in color, and it smells like garlic. Garlic जैसी स्मेल आती है। जब भी कोई पेशेंट मस्टर्ड गैस के कांटेक्ट में आएगा, तो उसकी आईज इरिटेट होगी और सारी स्किन पर बर्न्स हो जाएंगे, ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट इज आयोनाइजिंग रेडिएशन। व्हाट इज दैट? आयोनाइजिंग रेडिएशन मीन्स वन काइंड ऑफ रेडियो एक्टिव केमिकल, वी कैन से दैट कि वो बहुत ही रेडियो एक्टिव है, उसमें से रेडिएशंस निकलते हैं। सो व्हाट इज द अनदर नेम? Nuclear war. न्यूक्लियर वॉरफेयर। यस, जो न्यूक्लियर वॉर होता है उसमें ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस, सच काइंड ऑफ केमिकल्स यूज होते हैं, जो बहुत ही हाईली रेडियो एक्टिव है, जो पेशेंट के बॉडी में रेडिएशंस क्रिएट करके, वी नो दैट रेडिएशंस आर वेरी डेंजरस फॉर आवरसेल्फ। सो ये केमिकल्स की वजह से, रेडिएशंस की वजह से पेशेंट्स की डेथ हो सकती है। रेडिएशन कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल एब्जॉर्प्शन। एक्सटर्नल रेडिएशन भी हो सकता है, जब वॉर होता है तो एक्सटर्नल रेडिएशन होता है, बट अगर कोई पर्सन इंजेस्ट कर ले या ये केमिकल कंज्यूम हो जाए, तो इंटरनल एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। सिम्टम्स कैसे होंगे? माइल्ड रेडिएशन होगा तो सिम्टम्स कैसे होंगे? नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, Diarrhea. यस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। जैसे जैसे रेडिएशन ज्यादा, जितना जिसको ज्यादा एक्सपोजर हुआ है ये केमिकल का, उसके सिम्टम्स उतने ज्यादा हो गए। न्यूरोलॉजिकल, कार्डियोवास्कुलर इंपेयरमेंट्स भी हो सकता है, ल्यूकोपीनिया, परप्यूरा, हेमरेज और डेथ भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपोजर, कितना एक्सपोजर हुआ था। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज नर्सिस रोल। जब भी ऐसे कोई वॉरफेयर एजेंट के एक्सपोजर में आए या कहीं पे भी वॉर हुआ है यूजिंग बायो लाइक बायोलॉजिकल एजेंट्स और केमिकल एजेंट्स, सो व्हाट इज आवर रोल? फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी ऐसा बायो टेररिज्म हो तो वो स्टार्टिंग में कैसा लगेगा? Natural. नेचुरल लगेगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये किसी ने अटैक किया है, ऐसा ही लगेगा कि नेचुरल आउटब्रेक हुआ है। देन
पता चलेगा कि यस, ये तो किसी ने अटैक किया था। सारे नर्सिस और हेल्थ केयर वर्कर्स है, उन्हें प्रिपेयर रहना चाहिए कि कौन से टाइप का अटैक हुआ है, वेदर इट इज अ बायोलॉजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट। सो आपको वो पता चलेगा तो उसके साइन एंड सिम्टम्स पता चलेंगे, और आपको वो भी आइडिया लगाना है, अप्रोक्सीमेशन लगाना है कि इतने पेशेंट्स, इतनी पॉपुलेशन में अटैक हुआ था तो इतने पेशेंट्स तो अफेक्टेड होंगे, और हमारी हॉस्पिटल में इतने नंबर्स तक तो वो आ सकते हैं। सो हमें प्रिपेयर रहना है। आपको वो भी अवेयर रहना चाहिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया और वायरसेस, दे हैव कैपेबिलिटी टू चेंज देयर सेल्फ। उनमें कैपेबिलिटी है टू म्यूटेट देयर सेल्फ। सो वो म्यूटेशंस हो सकते हैं। सो देयर माइट बी चांसेस ऑफ रेजिस्टेंस टुवर्ड्स एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन, बिकॉज वो म्यूटेट हो जाएंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन कि जब इतने सारे पेशेंट्स आपके हॉस्पिटल में आ जाएंगे तो आपको इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग करना पड़ेगा, और वो प्लान एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सो ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 7। So, any doubt in this chapter? इसमें किसी को कोई डाउट है ये चैप्टर में? No, ma'am. Okay, so let's start new chapter. That is chapter number 14, medication administration. Okay, so our next chapter is chapter 14, medication administration and IV therapy. ये जो chapter है, we cannot say that chapter is not important. chapter के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. वो थोड़ी इंफॉर्मेशन किसी क्वेश्चन में मिक्स करके या डायरेक्ट वो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. बट व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज ड्रग डोज कैलकुलेशन. नेक्स्ट जनरेशन एंक्लेक्स एग्जामिनेशन, दैट इज एनजीएन एग्जामिनेशन में आपको मेडिकेशन ड्रग डोज कैलकुलेशन नहीं पूछते हैं. व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? व्हेन यू आर डूइंग जॉब इन हॉस्पिटल, सो आपको उस टाइम पर कैलकुलेशन करना होगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस थिंग. ये आपको पता होना चाहिए, तो आप आपकी प्रैक्टिकल एक्सपोजर में, प्रैक्टिस में, ड्यूरिंग योर वर्क आप वो कर सको. सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. whether you will solve the questions, whenever you will solve the questions in U world, उसमें आपको questions आएंगे drug dose calculations के, because U world के अंदर traditional method, that is old NCLEX examination pattern and NGN pattern दोनों mix है. So old pattern की वजह से आपको U world के अंदर drug dose calculations के sum पूछेंगे, but not in your actual examination. But still it is important for your practice. So we will study this. So the priority concept of this chapter is clinical judgment and safety. Why clinical judgment? Because it is very important. आप कभी भी medication administer कर रहे हो कोई patient में, so आपको उसका side effects, कितना dose administer करना है, क्या करना है, so you have a skill of clinical judgment. It is very important. और patient की safety तो बहुत ही important है, because overdose, wrong dose, medication errors हो जाएगी तो patient को problem हो जाएगा. So safety and clinical judgment is our priority for this chapter. Okay, so let's start. First is medication administration. In most clinical setting, an electronic infusion device is used to administer IV solutions and IV medications. However, the NCLEX RN examination is going to require that you correctly calculate an intravenous infusion rate via drops per minute in addition to calculating medication dose. So be sure that you master this skill. Yes, this is something informative. कि medication administration. What is medication administration? जो मेडिकेशन आप पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन. और मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारे ऐसे इन्फ्यूजन डिवाइसेस आते हैं जिसकी मदद से आप आईवी सॉल्यूशन, आईवी मेडिकेशन पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हो. और एंक्लेक्स में व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपको आना चाहिए कि आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, कितना रेट होगा, ड्रॉप्स पर मिनट, इतना फ्लो रेट होना चाहिए, ये सब आपको आना चाहिए. Not only calculating the medication dose, like डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि the dose must be like this. As 9 mg per
लीटर पर केजी। सो आप ये कैलकुलेट कर दोगे, जो बॉटल में होगा, जो भी पेशेंट का वेट होगा उससे मल्टीप्लाई करके आप कर दोगे। सो दैट इज कॉल्ड एज कैलकुलेटिंग मेडिकेशन डोज। और उसके अलावा आपको आना चाहिए कि कितने फ्लो रेट पर आप जाने दोगे, कितना फ्लो रेट मेंटेन करोगे, कितने ड्रॉप्स, इन्फ्यूजन का रेट कितना रखना है। सो ये भी आपको आना चाहिए। So let's see a table that is box 14.1 about some kind of information for medication administration. So before you are doing medication administration or during administration, what key points you have to remember? So let's study that. Assess the medication prescription. Yes. जब भी आप कोई पेशेंट में मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहे होते हो तो पहले आपको प्रिस्क्रिप्शन असेस करना होगा। प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, क्या देना है, कितना डोज देना है, कितने रेट पर देना है, वो सब आपको पहले पढ़ना होगा। यू हैव टू असेस दैट। कंपेयर द क्लाइंट्स मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन with all medications that the client was previously taking. That is called as medication reconciliation. Yes, जब भी आप कोई मेडिकेशन पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हो तो उससे पहले मेडिकेशन रिकंसिलिएशन करना बहुत ही जरूरी है। व्हाट इज दैट रिकंसिलिएशन मीनिंग? मीन्स आपने, डॉक्टर ने ये मेडिकेशन लिख के दे दी कि पेशेंट को ये मेडिसिन देनी है, एंड फॉर दैट यू आर ऑल्सो चेकिंग द पेशेंट्स मेडिकेशन जो वो पहले ले रहा था। इफ देर आर सिमिलर मेडिकेशन, डॉक्टर ने भी एम्लोडिपिन बोला है और पेशेंट भी घर पे एम्लोडिपिन ले रहा था, सो आप दो डोज नहीं दे सकते हो आप पेशेंट को। यू हैव टू चेक कि हाँ पेशेंट के पास ऑलरेडी ये मेडिकेशन है। सो यू विल टेल द पीएचसीपी कि पेशेंट के पास ये मेडिकेशन है और ये फ्रीक्वेंसी पे ले रहा था, तो दे माइट डू सम चेंजेस। सो दैट इज कॉल्ड एज मेडिकेशन रिकंसिलिएशन। आप पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन, प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन जो पेशेंट घर पे ले रहा है या पहले ले रहा था, और न्यू प्रिस्क्रिप्शन जो लिखा है, दोनों को कंपेयर करते हो, चेक करते हो कि कोई भी ड्रग कॉमन तो नहीं है ना उसपे। Ask the client about history of allergies and any use of herbal substances. Yes, आपको पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले पेशेंट को पूछना होगा कि आपको किसी ड्रग की, किसी दवाई की एलर्जी है या नहीं, कोई हर्बल सप्लीमेंट्स ले रहे हो या नहीं। वाई हर्बल सप्लीमेंट्स को आपका पूछना पड़ेगा पेशेंट को? वाई ask the patient about taking herbal substances? Because it is interact with other medication. Yes, because the जो भी हर्बल सब्सटेंसेस है वो दूसरी जो मेडिकेशन है उनके साथ इंटरेक्ट होते हैं और साइड इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। सो वी शुड नो कि पेशेंट कौन से हर्बल सब्सटेंस ले रहा है, सो हमें पता चले। अगर मेडिकेशन इंपॉर्टेंट है तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि डोंट टेक दिस हर्बल सप्लीमेंट्स व्हाइल वी आर गिविंग मेडिकेशन टू यू, और हम मेडिकेशन चेंज कर देंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द हर्बल सब्सटेंसेस ऑल्सो। Assess the client's current condition and purpose for the medication or IV solution. हमें client की current condition भी assess करनी है, क्यों पेशेंट को हम ये मेडिकेशन दे रहे हैं, क्यों ये IV सॉल्यूशन दे रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिविंग दिस स्पेसिफिक मेडिकेशन, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। डिटरमाइन द क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन और नीड फॉर द IV सॉल्यूशन। यस, हमें भी पेशेंट को समझाना है, पेशेंट को पता चला या नहीं हमें भी बताना है। पेशेंट, आप कोई भी मेडिसिन देते हो तो ऐसे देकर आ जाते हो पेशेंट को, पेशेंट आपसे पूछता है ना कि ये मेडिसिन क्यों दे रहे हो, तो आप उनको बताते हो कि यस आपको ये फीवर है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दिस मेडिकेशन, आपको ये हाइपरटेंशन है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दिस मेडिकेशन। तो उसको भी पता होना चाहिए व्हाट इज द पर्पस, मुझे क्यों ये IV सॉल्यूशन और ये मेडिकेशंस दी जा रही है। Teach the client about the medication and about self administration at home. Yes, पेशेंट को भी हमें समझाना होगा कि मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट क्या है, किससे ये इंटरेक्ट करती है, क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है। सो मेडिकेशंस रिलेटेड आपको सब कुछ पेशेंट को समझाना होगा। यू हैव टू टीच द क्लाइंट। और कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती है जो घर पे खुद लेनी होती है, तो वो कैसे लेना है वो भी आपको पेशेंट को टीच करना होगा, समझाना होगा। Identify and address the concerns. कैसे concerns like social, cultural, religious and spirituals that the client may have about taking the medications. Yes, before doing anything in the NCLEX हमें पहले क्या ध्यान में रखना है? We have to consider the patient's cultural, spiritual, religious and social background. उसका हमें पता होना चाहिए, because in some cultures, in some religions, they will not accept some kind of medications. There are certain peoples, there is a group of population, उनके कल्चर में वो लोग पेन को एज अ पनिशमेंट बिलीव करते हैं कि गॉड पनिशमेंट दे रहे हैं। सो
पेन, अगर पेशेंट को पेन हो रहा हो और आप एनाल्जेसिक्स दोगे तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दे डू नॉट एक्सेप्ट द एनाल्जेसिक्स, बिकॉज उनके लिए ऐसा है कि पेन इज द पनिशमेंट बाय गॉड, सो वो पनिशमेंट हमको सफर करनी ही है, सो यू हैव टू ऑलवेज कीप अप द कल्चरल कंसिडरेशन ऑफ द पेशेंट. Next, assess the need for conversion when preparing a dose of medication for administration to the client. Yes, आपको is there any need to convert the dose? For example, डॉक्टर ने लिखा है mg में, वायल में है ग्राम्स में, so there might be chances कि दोनों के यूनिट्स अलग अलग होंगे और कन्वर्जन की नीड होगी. So assess that कन्वर्जन की नीड है या नहीं. अगर पेशेंट ने डॉक्टर ने लिखा होगा कि 9 mg देना है और वायल में है 6 ग्राम और आपने यूनिट नहीं देखा और 6, आपने सोचा कि ये तो 6 ग्राम है तो आई हैव टू ऐड मोर 3 ग्राम्स और वैसा दे के आप दे दोगे तो there will be a problem. So you have to convert the medications before you are administering the drug in a patient. Assess the rights of medication administration. Yes, before giving medication you have to follow the medication rights of a patient. So कौन से rights होते हैं? Can anyone tell me? मेडिकेशन राइट्स क्या है? Right dose, राइट डोज, right Right patient, right time, right Right. route. right. यस, Right education. ओके, Right evaluation. Documentation. यस, assessment, Right techniques. right techniques, yes. Okay, so you have to follow all these rights such as right prescription, right medication, right dose, right client, right route, right frequency or time, right reason, right education. That is, राइट एजुकेशन मीन्स पेशेंट को पता होना चाहिए कौन सी मेडिकेशन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मेडिकेशन, व्हाट इज द एक्शन ऑफ दिस मेडिकेशन एंड पॉसिबल साइड और एडवर्स इफेक्ट. ये मेडिकेशन का नाम क्या है, क्यों दी जा रही है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगी, वो सब राइट टू एजुकेशन होगा. दैट इज पेशेंट को पता होना चाहिए. राइट असेसमेंट, असेसमेंट मीन्स जो भी क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोवाइडर है लाइक नर्सिस, PHCP, वो सब उसको असेस करेंगे. राइट टू रिफ्यूज द मेडिकेशन. यस, दिस इज ऑल्सो राइट. पेशेंट को अगर नहीं लेनी है तो देयर इज अ राइट कि वो रिफ्यूज कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस. उसको पता है कि ये कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, ये मेडिकेशन नहीं लोगे तो फिर भी उसको रिफ्यूज करना है तो वो कर सकता है. राइट अप्रोच और राइट टेक्निक, राइट इवेल्युएशन और रिस्पॉन्स ऑफ द मेडिकेशन. आपने मेडिकेशन दे दी उसका मतलब ये नहीं कि आपका काम खत्म हो गया होगा, आपको इवेल्युएट भी करना होगा. फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को फीवर है, आपने एंटीपायरेटिक दे दी, फिर आपने असेस ही नहीं किया, इवेल्युएट ही नहीं किया, सो देयर इज नो यूज ऑफ दैट. आपको इवेल्युएट करना होगा कि पेशेंट को फीवर कम हुआ या नहीं. सो राइट इवेल्युएशन और रिस्पॉन्स, राइट डॉक्यूमेंटेशन. सो यू हैव टू फॉलो ऑल दिस राइट्स while you are administering a medication. Inform the client for additional medications rights, which includes not receiving unnecessary medications. Other rights are also there. So हमें client को ये सारे rights पता नहीं होंगे. So आपको उनको information देनी होगी कि there are other additional rights also. For example, right which includes not receiving unnecessary medication. Yes, it is patient rights कि आप अननेसेसरी उसको कोई भी मेडिकेशन ना दो, जिसकी जरूरत नहीं है, सो अननेसेसरली आप वो मेडिकेशन नहीं दे सकते पेशेंट को. बीइंग एडवाइज ऑफ द एक्सपेरिमेंटल नेचर ऑफ मेडिकेशन थेरापी एंड द नीड टू गिव अ रिटन कंसर्न फॉर इट्स यूज. यस, समटाइम्स रिसर्च करने के लिए पेशेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि ये मेडिकेशन की असर ये पेशेंट पर कैसे हो रही है, ये पेशेंट पर कैसे हो रही है. सो पेशेंट को पता होना चाहिए कि ये एक्सपेरिमेंटल मेडिकेशंस है और पेशेंट को वो भी पता होना चाहिए कि वो रिटन कंसर्न देगा तभी उस पर होगा. पेशेंट को पता ही नहीं है और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, दैट इज बैड थिंग. पेशेंट को ये सब पता होना चाहिए, वो इन्फॉर्म्ड होना चाहिए. Then being informed if prescribed medication are a part of research study. Yes, पेशेंट को इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, उसको इन्फॉर्मेशन, उसका नॉलेज होना चाहिए कि जो भी मेडिकेशन या ट्रीटमेंट वो रिसीव कर रहा है दैट इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च स्टडी, एक रिसर्च के लिए है. And receiving appropriate supportive therapy in relation to medication therapy. Yes, it's also a patient's right. Along with the medication therapy, patient को appropriate supportive therapy भी मिले, वो भी पेशेंट का राइट है. सो ये सब आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना होगा. असेस द वाइटल साइंस,
check significant laboratory results and identify any potential interactions, that is food and medication interaction, medication interactions before administering a medication when appropriate. Yes, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन आपको वाइटल साइंस चेक करने होंगे, बिकॉज देर आर सर्टेन मेडिकेशंस कि जो वाइटल साइंस पर डिपेंड करती है. अगर हार्ट रेट कम होगी तो आप नहीं दे सकते, हार्ट रेट ज्यादा होगी तो नहीं दे सकते, ब्लड प्रेशर बहुत कम हो तो नहीं दे सकते. सो यू हैव टू चेक द वाइटल साइंस. सर्टेन लैब वैल्यूज भी आपको चेक करनी होगी, बिकॉज देर आर पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शंस. फूड और मेडिकेशन का इंटरेक्शंस होगा, लाइक सर्टेन काइंड ऑफ फूड यू कैन नॉट गिव विद सर्टेन मेडिकेशंस. मोस्ट कॉमन फूड जो बहुत ही मेडिकेशंस के साथ ड्रग इंटरेक्ट करता है वो कौन सा फूड है? grapefruit. ग्रेप फ्रूट. यस, ग्रेप फ्रूट बहुत सारी मेडिकेशंस है जिसके साथ इंटरेक्ट करता है. सो वी हैव टू चेक कि पेशेंट ग्रेप फ्रूट तो नहीं ले रहा. सो देयर आर certain other foods also. फिर medication interactions भी होता है, that we have already studied in pharmacology. So वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन से फूड में कौन सी मेडिकेशंस अवॉइड करनी है, कौन सी मेडिकेशंस के साथ कौन सी दूसरी मेडिकेशंस अवॉइड करनी है. So you should know all these things before administering a medication. Document the administration of the prescribed therapy and client's response to the therapy. अब आपने मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर ली, सो आपको वो सब डॉक्यूमेंट करना होगा, जो भी आपने मेडिकेशन एडमिनिस्टर की है, पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा था, पेशेंट को एलर्जी हुई थी कि नहीं, पेशेंट को वो मेडिकेशंस देने के बाद उसकी अच्छी हुई कंडीशन, लाइक फीवर था तो फीवर कम हुआ कि नहीं, जो भी रिस्पॉन्स था वो आपको सब नोट करना होगा, डॉक्यूमेंट करना होगा. अंडरस्टूड? Okay. Next is medication measurement system. We know कि medications के units होता है पीछे, जो for example kg, liters, ये सारे units है. So medication measurement systems we will study. So there are mainly two types of medication measurement system. One is metric system and second is apothecary or household system. हॉस्पिटल में मोस्ट कॉमनली मैट्रिक सिस्टम ही यूज होती है. एपोथेकेरी और हाउस होल्ड सिस्टम्स जो होती है, जो घर में हम यूज करते हैं, तो वो कौन सी कॉमनली हॉस्पिटल में यूज होती है, दैट वी विल स्टडी. सो मैट्रिक सिस्टम, इट इज गिवन इन बॉक्स 14.2. सो मैट्रिक सिस्टम्स, कौन सी मैट्रिक सिस्टम्स बहुत ही कॉमनली यूज होती है? सो मीटर, लीटर, मिलीलीटर, किलोग्राम्स, ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम एंड मिली इक्विवेलेंट. आपको ये सारे यूनिट्स पता होने चाहिए, बिकॉज एग्जामिनेशंस में अगर आपको कोई क्वेश्चन, ड्रग डोज कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं होगा, बट ऐसे ही लिखा होगा कि पेशेंट को ये मेडिसिन इतने अमाउंट में दी है, सो पीछे एब्रीवेशंस. मीटर मेडिकेशंस में नहीं आएगा, बट इट इज मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक सिस्टम. इट कैन बी इन लीटर, अगर पाइंट हो, फ्लूइड हो, तो पीछे एल लिखा होगा. एब्रीवेशंस क्या लिखे होंगे? मिलीलीटर में ml लिखा होगा, किलोग्राम्स में kg, ग्राम्स के लिए g, मिलीग्राम के लिए mg और माइक्रोग्राम के लिए mcg. डोंट गेट कंफ्यूज, बिकॉज स्टूडेंट्स इसमें ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. समटाइम्स mg को वो माइक्रोग्राम समझ लेते हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज. mg मींस मिलीग्राम एंड माइक्रोग्राम के लिए mcg है. माइक्रो, देयर इज c इन द स्पेलिंग, so in abbreviation there is also a c, mcg, don't get confused. और मिली इक्विवेलेंट को meq ऐसा लिखा जाता है, वो पूरा मिली इक्विवेलेंट नहीं लिखेंगे. आपने देखा होगा लेवल्स ऑफ सोडियम और पोटेशियम, उसमें कैसा लिखा होता है? 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. सो इन 1 liter there is this much amount of sodium and potassium is present, so it is milli equivalent. फिर उसको इक्विवेलेंट है, लाइक 1 mcg, this is 1 microgram is equals to 0.000001 gram. We will study कि how to convert from larger unit to smaller unit or how to convert from smaller unit to larger unit, वो आगे हम पढ़ेंगे. 1 mg is equals to 1000 mcg or 0.001 gram. 1 kg is equals to 1000 milligram. 1 gram is equals to 1000 milligram. 1 kg is equals to 1000 gram. This is very important. ये आपके लिए बहुत ही important है. आपको मीन वे में पता होना चाहिए. 1 kg is equals to 2.2 pound. LB is the unit for pound. Pound in terms of weight, not currency. So 1 kg is equals to 2.2 pound. ये आपको पता होना चाहिए. Sometimes क्वेश्चंस में वो लोग ने ऐसा ही लिखा होगा, 2 like
पेशेंट्स वेट इज 25 पाउंड, सो आपको उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेडिकेशन के डोज के लिए जो प्रॉपर यूनिट है दैट इज किलोग्राम, नॉट पाउंड। अगर क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन पाउंड दी गई है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 ml is equals to 0.001 लीटर। सो दिस आर द इक्विवेलेंट रूट्स। अगर 1 ml है तो लीटर में कितना होगा, तो 0.001 लीटर होगा। So let's study about metric system. The basic unit of metric measures are meter, liter and gram. वो basic units है metric systems के। मीटर measures the length, मीटर से आपको लेंथ पता चलेगी, लीटर से आपको वॉल्यूम पता चलेगा और ग्राम से आपको मास पता चलेगा, उसका वेट कितना है वो पता चलेगा। Next is apothecary and household systems. The apothecary and household systems are the oldest of the medication measurement system. बहुत पुराने जमाने में ये सिस्टम यूज होती थी, तब मैट्रिक सिस्टम नहीं थी। That's why in older forms, in older times, they are using this system. Apothecary measures such as grain, gram or minim and are not commonly used in clinical settings. एपोथिकरी मेजर्स क्या है, ग्रेन, ग्राम, हम ऐसा बोलते हैं ना इन अवर हाउस होल्ड कॉमन्स में ऐसे बोलते हैं कि इन गुजराती वी यूज टू से एक मण, सो वी डोंट नो व्हाट इज दैट मण, वी कैन नॉट यूज दैट इन क्लिनिकल सेटिंग। सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स, ग्रेन, ड्रैम, मिनिम, वो एपोथिकरी मेजरमेंट सिस्टम है और वो क्लिनिकल सेटिंग्स में यूज नहीं होगा। कौन सा यूज होता है, लेट्स सी। Okay, commonly used household measurements which are used in clinical settings are drop, teaspoon, tablespoon, ounce, pint and cup. ये जो मेजरमेंट्स है वो हॉस्पिटल में यूज होता है। लाइक डॉक्टर ऐसा बोलेंगे 1 टेबल स्पून ये सिरप दे देना, 1 टीस्पून ये सिरप दे देना, 1 आउंस ये सिरप दे देना। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीस्पून एंड टेबल स्पून, कोई मुझे बोलेगा? ड्रॉप्स भी देते हैं, वो जो ड्रॉपर होता है तो डॉक्टर ऐसा बोलेंगे 3 ड्रॉप्स इन मॉर्निंग, 2 ड्रॉप्स इन आफ्टरनून। सो ऐसे ड्रॉप्स भी क्लिनिकल सेटिंग्स में यूज होता है ये वर्ड। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीस्पून एंड टेबलस्पून? 1 teaspoon बराबर 5 ml. Yes, 1 teaspoon that is 5 ml. Then And tablespoon means 15 ml. 15 ml. Yes, टेबल स्पून इज 15 ml। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड 1 टेबल स्पून, तो आपको पता होना चाहिए कि ही हैज प्रिस्क्राइब्ड 15 ml ऑफ मेडिकेशन। 1 आउंस मींस 30 ml. 30 ml. Yes, so these are the commonly used household measures. टीस्पून, टेबल स्पून घर पे यूज होता है, किसी में भी कुछ डालना होता है लाइक सॉल्ट और कुछ भी डालोगे तो ऐसे मेजर करेंगे कि 1 टीस्पून डाल दो, 1 टेबल स्पून डाल दो। इन हाउस होल्ड आप ये मेजरमेंट नहीं करते कि इतना ग्राम डालो, इतना मिलीग्राम डालो। सो दिस आर द हाउस होल्ड मेजरमेंट्स और ये हॉस्पिटल्स में भी यूज होते हैं, क्लिनिकल सेटिंग्स में भी यूज होते हैं। बट टीस्पून दैट इज 5 ml, tablespoon that is 15 ml and ounce is 30 ml. You have to remember these things. The red point is very important point. जो भी red point दिखे, this is for new students. आपको जो भी बुक्स में red point दिखे वो बहुत ही important है। एग्जाम में ये red point से questions आने की probability बहुत ज्यादा है। So you have to anyhow remember these red points. The NCLEX will not present the questions that require you to convert from the apothecary system to the measurement of metric system. However, this system is still important to know because although it is not commonly used, you may encounter in the clinical settings. Yes, NCLEX की एग्जाम में कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि एपोथिकरी जो हमने ये जो यूनिट्स पढ़े लाइक टी स्पून, टेबल स्पून, ऐसे जो यूनिट्स पढ़े उसको हमें मेट्रिक सिस्टम में कन्वर्ट करना है। लाइक टी स्पून को हमने 5 ml बोला तो दैट इज द कन्वर्जन ऑफ एपोथिकरी सिस्टम टू मेट्रिक सिस्टम। ml इज मेट्रिक सिस्टम। सो NCLEX में आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। They will never ask you the conversion from one system to another system. मेट्रिक के अंदर अंदर वो आपको पूछेंगे कि लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच ml, वो मेट्रिक के अंदर अंदर का कन्वर्जन है वो आपको पूछेंगे। पर एपोथिकरी सिस्टम से मेट्रिक सिस्टम का कन्वर्जन वो आपको नहीं पूछेंगे। बट इट इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बिकॉज आप क्लिनिकल सेटिंग्स में जब आप वर्क करोगे तब आपको ये एक्सपोजर करोगे। टी स्पून लिखा होगा तब आपको पता होना चाहिए कि इट इज 5 ml। टेबल स्पून लिखा हो तो दैट
आपको पता होना चाहिए कि इट इज 15 ml, बट एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे वो लोग। अंडरस्टूड? यस और नो? ओके। नेक्स्ट इज एडिशनल कॉमन मेडिकेशन मेजरमेंट। दूसरी कॉमन मेडिकेशन के लिए मेजरमेंट क्या है? सो ml वो सब तो हमने देखा, उससे अलावा कौन से मेजरमेंट्स है? सो मिली इक्विवेलेंट, वो भी बहुत बार आपने सुना होगा। सो मिली इक्विवेलेंट एब्रिवेटेड एज MEQ. The milli equivalent is an expression of the number of grams of a medication contained in 1 ml solution. Milli equivalent क्या है? So milli equivalent का मतलब है कि this amount of gram is present in 1 ml solution. उसको हम मिली इक्विवेलेंट बोलेंगे। और मेडिकेशन में क्या लिखा होगा कि दिस मच ऑफ मिली इक्विवेलेंट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। पर मिली की इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि दिस अमाउंट ऑफ ग्राम इज प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन। सिर्फ 1 ml में इतने ग्राम्स का वो सब्सटेंस प्रेजेंट है, लाइक सोडियम, this much amount of sodium, like we can say 2 grams of sodium is present in 1 ml. So जो भी आपको मिलेगा that is called as milli equivalent। और पूरे ब्लड में 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना MEQ वो सोडियम है। फॉर एग्जाम्पल the measure of serum potassium is given in milli equivalents. We know कि सोडियम पोटेशियम वो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है वो मिली इक्विवेलेंट में लिखे जाते हैं। There are certain medications जो मिली इक्विवेलेंट में भी लिखी जाती है। यूनिट्स, वी नो यूनिट मीन्स हमने देखा होगा इंसुलिन इज ऑलवेज मेजर्ड इन यूनिट्स, नॉट इन ml. सो दिस इज कॉल्ड एज यूनिट। यूनिट मेजर्स अ मेडिकेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्शन, नॉट इज फिजिकल वेट। अगर आपको बोला गया हो कि 6 यूनिट इंसुलिन देना हो, सो व्हाट डज 6 इंडिकेट्स? उसकी एक्शन बोली जा रही है कि 6 यूनिट हैज मोर एक्शन कंपेयर टू 2 यूनिट्स। उसकी एक्शन कितनी है, कितना उसको पोटेंशियल है कि वो ग्लूकोज को डाउन करेगा। इट इज नॉट मेजर्ड इन वेट कि 6 यूनिट का वेट ज्यादा होगा 2 यूनिट्स का वेट कम होगा। इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज बेस्ड ऑन इट्स एक्शन। जितने यूनिट ज्यादा उतनी उसकी एक्शन ज्यादा होगी। सो इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्शन, नॉट इन टर्म्स ऑफ वेट। कौन सी मेडिकेशंस में हम ज्यादा यूनिट यूज करते हैं? तो पेनिसिलिन में हिपेरिन सोडियम। हिपेरिन सोडियम मीन्स एनॉक्सापैरिन आपने देखा होगा, इंजेक्टेबल जो प्री फिल्ड सिरिंज आती है। सो उसमें आपने ध्यान से देखा होगा तो इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन यूनिट्स जस्ट लाइक इंसुलिन। फिर इंसुलिन, ये सारे मेडिकेशंस है वो यूनिट्स में मेजर की जाती है, नॉट इन ml. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. So let's take a short break, then we will see the conversion. Conversion कैसे करना है वो देखते हैं। So before that, let's take a short break. Online students, please come back from break. Should we start now? Yes, ma'am. Okay, so let's learn about the conversions. जो मैंने आपको पहले बोला था कि मिलीलीटर टू लीटर में, लीटर टू मिलीलीटर में जो कन्वर्जन हम करते हैं, सो वो कैसे करना है, लेट्स स्टडी. So conversion between metric units. So it is already given in box 14.3 and clinical judgment that is generated in solution box. So let's see how to convert a metric unit. So there is one question and there is answer. So there are total 2 questions. Problem 1. Convert 2 grams to milligrams. 2 gram से milligram पर करना है. So 2 gram is larger कि milligram is larger? Gram is larger. So we are converting from larger to smaller. Okay, so large से small unit में हमें convert करना है. So आप कैसे करोगे? The solution is change a larger unit to smaller unit. जब larger unit से smaller unit में हमें change करना हो तो कैसे change करोगे? So 2 gram is equals to 2000 mg. कैसे हमें पता चला 2 gram is equals to 2000 mg? So we have done a multiplication by 1000 और move the decimal point 3 places to the right. जब भी लार्जर से स्मॉलर में मूव करना हो सो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या देयर इज अनदर ट्रिक जस्ट लाइक दिस. ये 2 है, 2 मिलीग्राम है, सो 2 ग्राम है, सॉरी 2.0 ग्राम होगा. सो लेट मी राइट डाउन लाइक दिस.
इसका मतलब भी 2 ही होगा, 2.000 लिखो तो भी इट इज कॉल्ड एज 2, नॉट 20,000, और ऐसे भी लिखते हैं. सो व्हाट दे आर सेइंग, अगर लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट तरफ हमें मूव करना हो तो ये जो डेसिमल पॉइंट है उसको 3 पॉइंट्स हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द राइट साइड. सो इट इज 1, 2 एंड 3. सो व्हाट इज योर आंसर? ऐसा हो जाएगा 2000.000. सो 2000 इज योर आंसर. अंडरस्टूड? जब भी लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट तरफ जाना हो तो यू कैन मल्टीप्लाई बाय 1000, और वो याद ना रहे सो सिंपली मूव टुवर्ड्स द राइट. जो डेसिमल पॉइंट है उसको 3 स्टेप राइट की डायरेक्शन में मूव करना है. अंडरस्टूड? यस और नो? Yes. कि Yes. फिर से एक्सप्लेन करूं? Right, sir. ओके, नेक्स्ट इज प्रॉब्लम 2. प्रॉब्लम 2 में क्या है? 250 ml को हमें लीटर्स में कन्वर्ट करना है. सो व्हाट इज दिस? ml क्या है? Small. स्मॉलर यूनिट. स्मॉलर यूनिट को लीटर्स में, लीटर क्या है? Larger unit. लार्जर यूनिट. यस, सो स्मॉल यूनिट से हमें लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करना है. सो अभी ऐसा करना होगा तो क्या करोगे आप? व्हेन देयर इज अ चेंज इन फ्रॉम अ स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट, so 250 ml is equals to 0.25 liter. कैसे वो हुआ? So whenever there is a conversion from smaller unit to larger unit, you have to divide it by 1000. लार्ज से स्मॉल करो तो मल्टीप्लाई करना है, स्मॉल से लार्ज करो तो डिवाइड करना है. और अनदर मेथड इज मूव द डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट. लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ हम 3 स्टेप्स मूव करते थे इन द राइट डायरेक्शन. जब स्मॉल से लार्ज में कन्वर्शन करना हो तब वो जो डेसिमल पॉइंट है उसको 3 पॉइंट से मूव करेंगे बट टुवर्ड्स द लेफ्ट. सो लेट्स राइट दिस. कैसे करेंगे हम, मैं आपको डेसिमल पॉइंट्स में लिख के बताती हूँ. So you are writing this 250.0000 लिखेंगे और इस तरफ भी ऐसे 0000 लिखते हैं. अभी हमें 3 पॉइंट्स मूव करने हैं. So here it is 1 point. So as it is. So let's move 3 points. So 1, 2 and 3. So what is our answer? 0.25. Yes. So this is our answer. This is how you have to do the conversion. आपको एग्जाम में ऐसा कन्वर्जन होगा. आपको डॉक्टर ने जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की है उसका यूनिट, मतलब उसकी mg, mcg, ग्राम ऐसा होगा. जो वायल है, जो मेडिकेशन आपके पास है ऑन हैंड, वो भी डिफरेंट होगी. सो देयर इज अ नीड फॉर द कन्वर्जन. पर आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे लार्जर से स्मॉलर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? What you Move can do? right. अगर 3 yes, decimal point right side में. 3 decimal points right side, or another method is you can simply multiply by. Multiply by 1000. Okay, आपको ने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपके पास 2 यूनिट्स अलग है, पर आपके पास स्मॉलर यूनिट है और आपको उसको लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करना है. सो देन व्हाट यू हैव टू डू? 3 decimal move left side. Yes, we can move 3 decimal point towards the left side, or another method is Divided by 1000. Divided by 1000. divide by 1000. Yes, so there are these 2 methods through which you can convert between the metric system, not between the apothecary and metric system, only in between the metric system. आप metric system के अंदर अंदर conversion कर सकते हो. Let's see the clinical judgment. Generate solution box. The nurse reviews the physician medication orders for a client diagnosed with a seizure disorder. अभी एक नर्स को डॉक्टर ने, पीएचसीपी ने मेडिकेशन का ऑर्डर दिया है. वो पेशेंट को ऑलरेडी सीजर था और इसके लिए मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया है. सो फिजिशियन का ऑर्डर क्या था? फेनिटोइन 0.2 ग्राम ओरली ट्वाइस अ डे. डॉक्टर ने ऐसा ऑर्डर लिखा था कि फेनिटोइन मेडिकेशन देनी है. व्हाट इज द यूनिट? इट इज इन ग्राम. ओरली ट्वाइस अ डे. नर्स अभी मेडिसिन प्रिपेयर कर रही है. द नर्स प्रिपेयर्स टू एडमिनिस्टर द मेडिकेशन एंड रीड द मेडिकेशन बॉटल which states that each capsule, जो एक कैप्सूल होती है, ओरली है, इट मींस कि इट इज इन टैबलेट फॉर्म. सो जो ईच कैप्सूल है इट इज 100 mg. जो मेडिकेशन बॉटल है, जिस बॉटल में कैप्सूल्स है, उस पर लिखा है कि एक टैबलेट में कितना ड्रग है? इट इज 100 mg. सो इट इज इन Smaller.
स्मॉलर यूनिट, यस। तो अभी नर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज डॉक्टर ने ग्राम में प्रिस्क्राइब किया है और बॉटल में mg है, सो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं दे सकते, वी हैव टू कन्वर्ट दिस। सो द नर्स कन्वर्ट्स 0.2 ग्राम टू mg। तो टेल मी कैसे होगा, 0.2 ग्राम है, 0.2 ग्राम है, सो लेट मी राइट लाइक दिस, ऐसे मैं लिख दूंगी अभी। यस, ગ્રામ છે તો પછી લાર્જર છે ને સ્મોલર કેમ નથી? લાર્જર માંથી આપણે સ્મોલર માં કન્વર્ટ કરવાનું છે, તો લેટ્સ રાઇટ કેવી રીતે થશે આપણે કરીએ હવે। લેટ ટેલ મી, ग्राम इज लार्जर यूनिट एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट द स्मॉलर यूनिट, सो कैसे कन्वर्ट करोगे आप? મૂવ રાઈટ સાઈડ यस, कितने पॉइंट मूव करोगे? 3 पॉइंट 3 पॉइंट्स, सो 1 2 एंड 3, सो आपको आंसर मिल गया, इट इज 200 mg। आपको 200 आंसर मिल गया। कैप्सूल कितने mg की है? 100 mg, और डॉक्टर ने बोला है 2 ग्राम्स देना है, 0.2 ग्राम्स देना है, और आपके पास आंसर आया 200 mg। तो आप क्या करोगे, एक की जगह कैप्स 2 टैबलेट दे दोगे, 2 कैप्सूल दे दोगे, बिकॉज एक कैप्सूल में 100 mg ड्रग है। सो डॉक्टर ने बोला है 0.2 ग्राम देने का, उसका मतलब कि 200 mg देना है हमें, सो हम 2 टैबलेट दे देंगे। सो when the nurse converts 0.2 gram to mg and determines that 0.2 gram is equals to 200 mg and prepares for administration of 2 capsules, और नर्स को पता चल जाएगा कि हाँ मुझे अभी 2 कैप्सूल देनी है। अंडरस्टूड? हाँ, अब बॉटल, कैन यू चेंज mg टू ग्राम? mg का ग्राम में कन्वर्ट चेंज कर सकते हो आप? यस और नो? नो वी कैन नॉट, नो वी कैन नॉट डू। ग्राम का हमने mg में क्यों किया, बिकॉज बॉटल में जो लिखा है वो सेम रहेगा। आप बॉटल में जो कैप्सूल के अंदर का डोज है वो आप चेंज कर पाओगे? एक टैबलेट में 100 mg मिलेगा तो वो आप चेंज कर सकते हो? नहीं वी कैन नॉट चेंज द अवेलेबल फॉर्म। आपके पास जो मेडिसिन जितने यूनिट में है वो ही रहेगी, आप वो चेंज नहीं कर सकते। आप क्या चेंज कर सकते हो, जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है उसका यूनिट आप बदल सकते हो, पर बॉटल में जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. हाँ, तो ऑलवेज हमें क्या ध्यान रखना है, जो बॉटल में यूनिट दिया गया है, आपको क्वेश्चंस ऐसे दी जाएंगे कि डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब किया और आपके पास ये इतना अमाउंट है, सो ऑलवेज हमें जो भी बॉटल में दिया है उसमें जो यूनिट दिया है उसमें ही हमें आंसर लाना है। अगर बॉटल में ग्राम दिया हो और डॉक्टर ने mg में प्रिस्क्राइब किया हो तो हम mg में से ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज हमारे पास ग्राम में ही है, बॉटल का हम चेंज नहीं कर सकते, वो जो है बनाया हुआ वैसा ही है। सो मेक श्योर कि जो आपको अवेलेबल फॉर्म है, जो आपके हाथ में बॉटल में है, वो ही आपको, जो भी यूनिट्स अलग अलग दिए हैं आपको, जो बॉटल में यूनिट दिया है उसमें ही आंसर लाना है। अंडरस्टूड? Yes. यस, समवन इज आस्किंग मी समथिंग इन बिटवीन? એમાં જે ડોક્ટરે જે પ્રિસ્ક્રાઇબ કર્યું એને જ આપણે મેઇન કન્સિડર કરીને મતલબ સમજવાનું કે લાર્જર કે સ્મોલર। यस, हमें हमें मेन कौन सा कंसीडर करना है, जो बॉटल वाला है, अवेलेबल फॉर्म है, वो हमारे लिए मेन है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जो डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब किया है उसको हमें कन्वर्ट करना है। सो यू कैन सी, जस्ट गिव मी वन एग्जांपल। बॉटल में ऐसा दिया गया है कि 1 टैबलेट कंटेन्स 2000 mcg, और डॉक्टर ने बोला है कि पेशेंट को 20 mg देना है। सो हमें कौन से यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, mg टू mcg कि mcg टू mg? कौन सा कन्वर्ट करना है हमें, बोलो, ये वाला करना है या सेकेंड में? mg to mcg mg to mcg, why you have converted mg to mcg and not mcg to mg? आपने mcg to mg क्यों कन्वर्ट नहीं किया? કેમ કે તમે કીધું કે જે ટેબ્લેટ હોય એને આપણે ચેન્જ ના કરી શકીએ। yes, we cannot the available drug form, डॉक्टर का हम चेंज कर सकते हैं पर जो बॉटल में जितना है वो ही रहेंगे। तो हमें पता है कि हमें mg टू mcg कन्वर्ट करना है, सो mg इज લાર્જર larger and mcg is સ્મોલર स्मॉलर। यस, अगर ऐसा हो कि बॉटल में फॉर एग्जांपल mg लिखा है और डॉक्टर ने mcg में दिया है,
सो देन कौन सा यूज करोगे, Smaller. फर्स्ट वन और सेकेंड वन? Second one is smaller to larger. Second one. Yes, so then it will become smaller to larger. In short, जो बॉटल फॉर्म में है वो ही यूनिट में हमें आंसर लाना है. अगर बॉटल फॉर्म में स्मॉलर है तो लार्जर टू स्मॉलर होगा. बॉटल फॉर्म में लार्ज है तो बॉटल फॉर्म में लार्ज है तो स्मॉल टू लार्ज होगा. डॉक्टर ने स्मॉलर में दिया होगा. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. एवरीवन गॉट माय पॉइंट? कि फिर से एक्सप्लेन करूं? किसी को डाउट है? कुछ भी क्वेश्चंस है? મેમ આ 3 ડેસિમલ પોઈન્ટ ક્યાંથી કાઉન્ટ કરવાના? જ્યાં જ પોઈન્ટ હોય ત્યાંથી જ કાઉન્ટ કરવાના. ઇફ ઇટ ઇઝ ગિવન એઝ 200 તો પોઈન્ટ 200 પછી જ હોય. ઇફ ઇટ ઇઝ ગિવન 2.5 તો પોઈન્ટ 2 અને 5 ની વચ્ચે જ હોય. સો 1 2 એન્ડ 3 પોઈન્ટ્સ મૂવ કરવાના. અગર આ બાજુ જઈએ તો 1 2 અને 3 પોઈન્ટ્સ મૂવ કરવાના. તો જ્યાં પોઈન્ટ હોય એના પછી, ફોર એક્ઝામ્પલ ઇટ ઇઝ હિયર, સો 1 પોઈન્ટ વિલ બી 2.5, સેકન્ડ વિલ બી 25 એન્ડ થર્ડ ઇઝ 250. અંડરસ્ટૂડ? જ્યાં પોઈન્ટ છે એના પછીના થર્ડ પોઈન્ટ પર, નોટ આફ્ટર 3. 3 પછીના નહીં, જે થર્ડ નંબરનો પોઈન્ટ છે એ આપણા માટે થર્ડ ડેસિમલ પોઈન્ટ કહેવાય. ગોટ માય પોઈન્ટ? This is 1 point, this is second point, and this is third point. Third number decimal point. Not like after 3. 1, 2 અને 3 પછીનો નહીં, third point. ઓકે. Okay, any other doubts? બીજા કોઈને કોઈ question? Okay, let me give you one problem. Convert 150 ml to liter. चलो. Right. Okay, tell me the answer. 0.15. 0.1. 5 लीटर. हाँ. બધાનો સેમ આન્સર છે? सारे स्टूडेंट का सेम आंसर है? यस और नो? कि किसी का कोई अलग आंसर है, लाइक 0.015, 1.5, ऐसा कोई आंसर है? ओके, एवरीवन हैज सेम आंसर. तो कैसे आपने किया? इन दिस सिचुएशन यू विल मूव टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट? Left. Left. Why left? કેમ કે smaller to larger છે ને. Yes, because there is a need of conversion from smaller unit to larger unit. So large में convert करना है, so we will move towards the left side. So let me write it down. 150 यहाँ पर point है. 150 है, so always point 150 के बाद होगा. मैं ऐसे लिख दूंगी ऐसे. Okay. Now we want to move towards the left. So Himakshi, see 1 point, second point, and third point. So point will be here. So answer is 0.15 or 150. You can write any number, but it is 150. अगर एग्जाम में आपको बोला है कि राइट इन सिंगल डेसिमल पॉइंट, तो आप कैसे लिखोगे 0.15 को? सिंगल डेसिमल पॉइंट मीन्स पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, नॉट 2. देयर आर 2 डेसिमल पॉइंट्स. पर एग्जाम में बोला हो कि राइट इन अ सिंगल डेसिमल पॉइंट, तो आप कैसे लिखोगे? इसी आंसर को 0.15 को सिंगल डेसिमल पॉइंट में कैसे लिखोगे? 0.1. ओके, एनी अदर आंसर्स? व्हेनेवर देयर इज एक पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा नंबर हो तो आप क्या करते हो? हाँ, उसको एक नंबर बढ़ा देते हैं, मतलब Yes, we have to add. So answer will be 0.2, not 0.1. Understood? So जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें ऐसा लिखा होगा, राइट इन 1 डेसिमल पॉइंट, राइट इन 2 डेसिमल पॉइंट, राइट इन 3 डेसिमल पॉइंट. ओके, चलो 0.15 को 3 डेसिमल पॉइंट में कैसे लिखोगे आप?
How you will write 0.15 in 3 decimal points? It is given in 1, 2 or 3. कितने decimal points में है आंसर? It is in 2 decimal points. पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो इसे 2 डेसिमल पॉइंट आंसर बोलते हैं. 3 डेसिमल पॉइंट में आप कैसे लिखोगे? 0.150. Yes. So it is called as 3 decimal point. Understood? क्वेश्चन को आपको रीड करना है कि क्या लिखा है. लास्ट में ऐसा लिखा होगा, राइट योर आंसर इन 1 डेसिमल पॉइंट, 2 डेसिमल पॉइंट, 3 डेसिमल पॉइंट और होल नंबर. होल नंबर लिखा हो तो आप पॉइंट नहीं लिख सकते. लाइक 15.24 है ऐसा लिखा है एंड दे आर आस्किंग यू कि राइट द आंसर इन. आपने पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया और आपका आंसर ये आया है, बट क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि राइट योर आंसर इन 1 डेसिमल पॉइंट. तो आप कैसे लिखोगे? 1 डेसिमल पॉइंट. सो 15.2. सिर्फ पॉइंट के बाद एक ही नंबर रखोगे आप. अगर आपको एग्जाम में बोला है कि राइट योर आंसर इन होल नंबर तो फिर कैसे लिखोगे? ओनली 15. यू कैन नॉट एड पॉइंट. होल नंबर में पॉइंट नहीं आता, सिर्फ नंबर ही लिखना होता है. एंड व्हेनेवर देयर इज रिटन कि राइट योर आंसर इन 1 डेसिमल पॉइंट, 2 डेसिमल पॉइंट, 3 डेसिमल पॉइंट, तो पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 3 नंबर रिस्पेक्टिवली आपको ऐड करने होंगे. माय आंसर हैज केम लाइक 16.28 एंड इट इज रिटन राइट योर आंसर इन होल नंबर. सो कैसे लिखूंगी मैं मेरा आंसर? 16. Only 16. Yes. If it is mentioned, write your answer in 3 decimal point. तो मैं कैसे लिखूंगी? 16.280. 16.280. Okay. And it is written कि write your answer in 1 decimal point. तो मैं कैसे लिखूंगी? 16.2. No. 1 decimal point. Yes, it is. I have to write in 1 decimal point. So, Sorry, 3.3. yes, 16.3. Why 16.3? Because second digit is greater than 5. If there is 5, then I have to still write 3. 5 या 5 से ज्यादा हो second point तो वो आगे add हो जाएगा. Understood? If my answer is 17.5 and it is written that write your answer in whole number, तो मैं कैसे लिखूंगी? 17. Sorry, 18. 18. Yes. If it is written like my answer is 19.3 and it is mentioned write your answer in whole number, तो मैं कैसे लिखूंगी? 18. Only 19 because after point there is only 3. It is smaller than 5. पता चला कैसे लिखना है, क्या करना है? डेसिमल पॉइंट, होल पॉइंट का नंबर पता चल गया कैसे लिखना है एवरी स्टूडेंट्स. अगर आप ऐसा मिस्टेक करोगे लाइक यू फॉरगॉट टू ऐड 1 नंबर तो आपका आंसर रॉन्ग कहला जाएगा. सो रीड द क्वेश्चन. उन लोगों ने कैसे मांगा है, whether they have asked you to write in a whole number, 1 decimal point, 2 decimal point, 3 decimal point, वो चेक करना है. Understood? Okay. So be very attentive. अगर आपने वो रीड नहीं किया, 1 decimal point में ही लिखना है, वैसा आपने करेक्ट आंसर लिखा, your answer is 16.28. बट उन लोगों ने बोला था कि राइट योर आंसर इन 1 decimal point और आपने 2 decimal point लिखा, देन इट इज ऑल्सो रॉन्ग. उन लोगों ने जितना मांगा है उतना ही लिखना है आपको. 1 decimal point में मांगा है तो यू कैन नॉट राइट योर आंसर इन 2 decimal point. भले वो राइट लिखा आपने, वो रॉन्ग ही कहला जाएगा. अंडरस्टूड? Yes. ओके. सो रीड योर क्वेश्चन वेरी केयरफुली. ओके. सो जो हमने टेबल में पढ़ा वो ही डिस्क्रिप्शन में है. आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट. The metric system is a decimal system. Therefore, conversion between the unit in this system can be done by dividing or multiplying or by 1000 or by moving the decimal 3 places to the right or 3 places to the left. हमें shift conversion करना हो तो 2 मेथड से, या फिर divide या multiply करो 1000 से और else decimal point को right और left
3 पॉइंट्स को मूव करो. फॉर कन्वर्जन ऑफ लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट, multiply by 1000 or move the decimal points 3 places to the right. In the metric system, to convert the smaller unit to a larger unit, divide it by 1000 or move the decimal point 3 places to the left. This is already we have studied in the table. Okay, conversion between the systems. एंक्लेक्स में क्या बोला था, नॉर्मली बिटवीन द सिस्टम्स आपको नहीं पूछेंगे एग्जाम में, बट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्लिनिकल सेटिंग्स में आपको आ सकता है. सो कन्वर्जन बिटवीन द सिस्टम्स मींस it is not in between the metric system. There is household system, we have to convert into the metric system. So conversion between system is necessary when the medication prescription is written in one system but the medication label is stated in another system. डॉक्टर ने बोला 1 tablespoon और जो बॉटल है उसमें तो सिर्फ ml में ही लिखा है, टेबल स्पून में नहीं लिखा. तो एट दैट टाइम यू हैव टू डू द कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम. Medication are not always prescribed and prepared in the same system of measurement. Therefore, conversion of units from one system to another system is necessary. हर बार ऐसा नहीं होगा कि डॉक्टर ने सेम ही प्रिस्क्रिप्शन दिया है. Sometimes there might be chances कि डॉक्टर ड्रॉप्स 2 ड्रॉप्स 3 ड्रॉप्स टेबल स्पून टी स्पून ऐसे आउंस ऐसा दिखा होगा और आपको बॉटल के अकॉर्डिंग देना होगा. सो एट दैट टाइम आपको कन्वर्जन आना चाहिए. However, the metric system is most commonly used system in the clinical settings. हाँ, ऐसा बहुत ही rarely होगा because majority of the times hospitals में कौन से systems use होती है, metric system. Household system बहुत ज्यादा use नहीं होती, but you should be prepared. कभी कभार ऐसा हो सकता है, rarely ऐसा हो सकता है. Calculating equivalence between two systems may be done by using the method of ratio and proportion. जो दो सिस्टम की इक्विवेलेंट है वो कैसे करोगे आप, सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड से है. देयर इज अ फॉर्मूला जो हम टेबल बॉक्स 14.4 और 14.5 में पढ़ेंगे. कन्वर्जन इज द फर्स्ट स्टेप इन कैलकुलेशन डोजेस. दिस इज रेड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट. जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करो या डोज कैलकुलेट करो, सो कन्वर्जन इज द फर्स्ट स्टेप. बिकॉज जब भी कैलकुलेशन करो तो सारे यूनिट्स सेम होने चाहिए. एक mg में और एक kg में तो आप सम सॉल्व कर पाओगे, नो. सो कन्वर्जन इज द फर्स्ट स्टेप. पहले कन्वर्जन करो, सबको सेम यूनिट में लाओ, देन डू द कैलकुलेशन. अंडरस्टूड? Okay, so let's see box 14.4 and 14.5. Okay, so ratio and proportion. रेशियो का मतलब क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स. हम ऐसे लिखते हैं ना, 1:2. So it is also written as 1:2. So it is called as ratio. So ratio means relationship between two numbers separated by a colon. For example, 1:2. So the relation between 1 to 2, it is written as 1 divided by 2 or 1:2. So this is called as ratio. What is proportion? The relationship between two ratio. ये 1:2 और 3:4 है. सो इन दोनों का रिलेशनशिप बताना हो तो इसमें हम 2 कॉलन करेंगे. सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और अनदर वे इज 1:2 फिर ऐसा और 3:4. अंडरस्टूड? सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शन. 2 नंबर के बीच में रिलेशन हो तो उसको रेशियो बोलेंगे और 2 रेशियो के बीच में रिलेशन हो तो इसको प्रोपोर्शन बोलेंगे. So proportion means the relationship between two ratios separated by a double colon or equal to sign. अगर हम ऐसा ना लिखे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, like 1:2 is equals to 3:4. Understood? So there are two signs for proportion. Got my point? What is ratio and proportion? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. So there is one formula. ये जो फॉर्मूला है दैट इज वेरी हार्ड. सो हम ये फॉर्मूला स्किप कर देंगे. हम अलग फॉर्मूला पढ़ेंगे जो आपकी बुक में टेबल बॉक्स 14.8 में ऑलरेडी दिया गया है. वो लास्ट में वो फॉर्मूला दिया गया है. सो वी विल डायरेक्टली स्टडी दैट फॉर्मूला. हम ये फॉर्मूला स्किप कर देंगे बिकॉज इट इज वेरी कंफ्यूजिंग. सो फॉर्मूला क्या है रेशियो और प्रोपोर्शन का, लेट्स स्टडी.
So the formula is x means हमें ये find out करना है. X means always we have to find out the x. What is the formula? So remember this formula. ये formula आपके लिए बहुत important है. So d by h multiply by v. So what is d, what is h, and what is v? Let's study. D means desired amount. So desired क्या है? So what you want to give the patient. This is what the HCP order, what the prescription is for. D means जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो वैल्यू को किसमें आप लिखोगे. अगर डॉक्टर ने ऐसा बोला था, हमने आगे ही क्वेश्चन सॉल्व किया कि 0.2 ग्राम फेनिटोइन हमें देना है. सो इसको आप कहां पर लिखोगे 0.2 ग्राम को? डी के साइड डी की वैल्यू में. मींस डिजायर, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको हम डी कहते हैं, उसको डी में लिखना है. हम कन्वर्ट करके लिखेंगे बिकॉज सारे वैल्यूज अलग अलग है. सो 0.2 ग्राम को हमने mg में कन्वर्ट किया था तो 200 mg आंसर आया था. तो यू विल राइट 200 mg इन द वैल्यू डी. डी में हम ये लिखेंगे. व्हाट इज एच? H means on hand. This is the quantity of medication like mgs, mcgs, gram that you actually have on the hand. What the label says on the bottle, what the pharmacy sent up. जो आपके पास बॉटल है, जो टैबलेट का वो भी बॉटल है, सिरप है, जो भी बॉटल है उसमें कितना है, ऑन योर हैंड कितना है. डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था वो नहीं, ऑन द हैंड कितना था. सो जो हमने फेनिटोइन वाला सॉल्व किया था तो बॉटल में कितना प्रिस्क्रिप्शन लिखा था, एक टैबलेट में कितना अमाउंट का था ड्रग, 100 mg. 100 mg. तो जो बॉटल पे लिखा है वो कहां पर लिखोगे आप? इन द प्लेस ऑफ एच. सो यू विल राइट 100 mg. Now what is V? V means this is what the medication you have in your hand actually comes in. You can not see the mgs, mcgs, etc. You can see the mls, tablets, capsules. This is what you will actually be able to measure out for the patient. V means vehicle. कौन से फॉर्म में है आपके पास? टैबलेट फॉर्म में है, कैप्सूल फॉर्म में है कि लिक्विड फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में ml लिखा होगा. सो आपके पास कौन से फॉर्म में है? सो हमने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो कौन से फॉर्म में था? फेनिटोइन वाला टैबलेट फॉर्म में होता. टैबलेट फॉर्म, इन द कैप्सूल फॉर्म. तो उसमें क्या लिखा था? 100 mg पर कैप्सूल. सो उसका मतलब क्या? एक टैबलेट में 100 mg था. तो व्हीकल आप क्या लिखोगे? इंटू V1 लिखोगे बिकॉज व्हीकल एक था. अगर ऐसा लिखा हो 100 mg इन 2 कैप्सूल तो व्हीकल आपके लिए V क्या होगा? 2 होगा. कैप्सूल. 2 होगा. यस, समटाइम्स आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा कि 50 mcg इन 1 ml बॉटल, सिरप की बॉटल होगी तो ऐसा लिखा होगा कि 1 ml में 50 mcg है तो दिस मच अमाउंट ऑफ ड्रग इज देयर और आपको कितने ml निकालने हैं. तो V आप क्या लिखोगे? 1. 1. यस, अगर ऐसा लिखा होगा कि 250 mcg इन 3 ml सो व्हीकल क्या होगा आपके लिए? V3 होगा. तो यस, पता चल गया व्हाट इज D, व्हाट इज H एंड व्हाट इज V. D मींस जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो. H मींस आपके पास कितना है, जो वो वैल्यू है बॉटल में इतना लिखा है सो वो आप H में लिखोगे. और V मींस कौन से फॉर्म में है. अगर ml, टैबलेट, कैप्सूल वो फॉर्म में है तो 1 कैप्सूल है, 2 कैप्सूल है, 3 कैप्सूल है, जितना भी व्हीकल है. इन 1 कैप्सूल लिखा होगा तो आप 1 लिखोगे, इन 2 कैप्सूल लिखा होगा तो आप 2 लिखोगे, इन 3 कैप्सूल तो आप 3. सिमिलरली 1 ml तो 1, 2 ml तो 2, 3 ml तो 3. So this is how you have to write. Let's do one practice solution. एक करते हैं फिर पता चलेगा कि कैसे करना है. एक सॉल्व करते हैं हम. So first question is, you receive an order to administer 400 mg ibuprofen to your patient. Let me write 400 mg ibuprofen to your patient. PRN Q6 hours. You retrieve the medication which comes in 200 mg tablets. How many tablets you administer to the patient? आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि पेशेंट को 400 mg ibuprofen देना है. PRN. What is PRN? What is PRN? As per needed. According to need. Yes.
whenever needed, every 6 hours, हर 6 घंटे के बाद अगर there is a need for the pain medication administration, you can give, but every 6 hours, उससे पहले नहीं. You retrieve the medication, आपके पास वो टेबलेट का पूरा सैशे आ गया, उसमें लिखा था कि 200 mg टैबलेट्स है. उसका मतलब क्या? What does this mean? What does this mean? 200 mg tablets. What is this? One Yes, tablet उसका के अंदर 2000 mg. yes, one tablet के अंदर 2000 mg 200 mg कंटेंट है. So आप पेशेंट को कितनी टैबलेट्स दोगे? So let me write the formula. What is the formula? X equal to D upon H. X means जो हमें find out करना है. How many tablets we have to find out. So X is equals to D By D upon D H. divided by H multiply by V. V. So what you will write in D? D में क्या लिखोगे? पहले is there any need for conversion? Conversion की need है? नहीं. No, because दोनों नहीं. mg में है. अगर ये ग्राम में होता और एक mcg में होता तो there should be a need of conversion. Okay, but there is no need of conversion. So D में क्या लिखोगे आप? 400 mg. 400 mg जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है. H में क्या लिखोगे? 200. 200. 200 जो एक्चुअली आपके पास जो अवेलेबल फॉर्म है वो. और व्हीकल में क्या लिखोगे? 1. 1. मतलब टैबलेट लिखोगे बिकॉज इट इज इन फॉर्म ऑफ टैबलेट. सो mg कट हो जाएगा, 0 0 कट हो जाएगा और 2 2 जा 4. सो योर आंसर विल बी 2 into 1 टैबलेट. सो 2 टैबलेट्स आप दोगे पेशेंट को. अंडरस्टूड? Yes. यस. सो दिस इज द सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको खुद करना है. यू आर पासिंग अ मेडिकेशन ऑन अ पीडियाट्रिक फ्लोर and have a patient who needs his scheduled diazepam. आप पीडियाट्रिक फ्लोर पर हो और पेशेंट को डाइजेपाम की जरूरत है. द ऑर्डर रीड्स मींस डॉक्टर ने बोला है 2.5 mg पर ओरल BID. व्हाट इज दैट? 2.5 mg ओरली देना है ट्वाइस अ डे. Yes, BID, that is twice a day. You remove the medication and label reads diazepam 5 mg per ml suspension. आपने वो बॉटल निकाली और लेबल रीड किया. सस्पेंशन मींस वो सिरप फॉर्म में है. सो आपने उसमें रीड किया तो उसमें लिखा था 5 mg per ml. How many milliliters you will administer to your patient? Now solve this question. Everyone, take out your notebooks and solve this question. Done? हो गया? Yes or no? Yes, ma'am. What is your answer? Tell me. 0.5 ml. 0.5 ml. 0.5 ml. Other students, किसी का कुछ और आंसर आया है ऐसा कुछ? कोई अनदर आंसर हो? सबका सेम आंसर आया है 0.5 ml. Yes, Okay. ma'am. So tell me how you have done. D means
2.5 Prescribed ml. dose. ऑलवेज राइट द यूनिट। यूनिट लिखने से आपका आंसर करेक्ट फॉर्म में आएगा। आपको एमएल में फाइंड आउट करना है कि एमजी में, सो यूनिट ऑलवेज लिखो फॉर योर सेफ साइड। फिर एच में क्या लिखोगे? 5 5 1 mg Five. ml. और बी में into 1 ml. 1 ml. 1 ml. बिकॉज 5 mg इन 1 ml लिखा है। अगर यहाँ पर 2 ml होता तो 2 ml. 2 2 ml. लिखते हैं, yes, but it is only ml लिखा है, so it means 1 ml। mg कट हो गया, इसका आंसर क्या होगा? 2.5 divided by 5 0.5. is 0.5 ml. So correct answer is 0.5 ml. Understood? Yes, ma'am. Okay. So this is the solution. Desired means first में 400 था, on hand 200 था, vehicle was 1 tablet. So formula is D by H into V. So 400 mg divided by 200 mg into 1 tablet. The answer is 2 tablets. सेकेंड क्वेश्चन का डिजायर 2.5 mg था, ऑन हैंड हमारे पास जो सॉल्यूशन थी वो 5 mg था, व्हीकल वाज 1 ml, 1 ml में इतना था। सो फॉर्मूला इज x इज इक्वल्स टू d by h into vehicle. So 2.5 mg by mg into 1 is equals to 0.5 ml. So you will administer 0.5 ml of diazepam to your patient. हम हमारे पेशेंट को 0.5 ml ही देंगे। Understood? So ये आपके लिए, ये फॉर्मूला में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, सैंपल प्रॉब्लम। The prescription reads morphine sulfate 4 mg by IV push, that is IVP. The medication ampule reads 10 mg per ml. The nurse would prepare how many ml to administer the correct dose. So D में क्या लिखोगे आप? 4 प्रिस्क्रिप्शन रीड कर रहा है कि 4 mg, सो हम इसमें 4 mg लिखेंगे। आपने जो एम्प्यूल है, आईवी देना है, सो एम्प्यूल से देना है, मॉर्फिन एम्प्यूल में से देनी है। तो जो एम्प्यूल है उसमें कितना लिखा है? 10 mg. 10 mg in 1 ml. So H on hand is 10 mg. Vehicle क्या होगा? 1 ml. 1 ml. 1 ml. So mg will get cut. 4 divided by 10, it is 0.4 ml आप administer करोगे पेशेंट को। So you can see the answer is 0.4 ml. This formula is so confusing. So this is the simple formula. You can solve using this formula. This type of question, जब भी ऐसा लिखा हो कि कितने ml दोगे, कितनी टैबलेट्स दोगे, कितनी कैप्सूल दोगे, so you have to write like this. अगर कभी भी हमने जो वो 2 टैबलेट वाला आंसर सॉल्व किया था उसमें 2 आंसर आया था, सो वी हैव चूजन 2 टैबलेट्स। अगर ऐसा आंसर आए 0.5 टैबलेट आंसर, तो आप कैसे दोगे वो पेशेंट को? आपका हाँ। आंसर 2 आया था इसलिए आपने लिखा 2 टैबलेट दोगे। 0.5 आंसर आए तो पेशेंट को कैसे दोगे मेडिकेशन? हाफ करके। Half cut. हाफ करके, यस। सो वी विल सिलेक्ट वन ऑप्शन कि हाफ टैबलेट हम देंगे पेशेंट को। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. so let's see next box, that is calculating equivalence between two systems. अभी 2 सिस्टम्स के बीच का कैलकुलेशंस है। नॉर्मली एनक्लेक्स एग्जामिनेशन में आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट अगेन दिस इज फॉर योर नॉलेज, वो आपको कभी नहीं पूछेंगे। Calculating equivalence between two systems may be done by using the method of ratio and proportion. Problem है, the PSCP prescribes nitroglycerin 1 by 50 grain. Grain is unit for apothecary system. Apothecary में हमने देखा था ग्रेन, रैम, मिनम, वो ऐसे सिस्टम्स थे। तो डॉक्टर ने ऐसे प्रिस्क्राइब किया है कि 1 by 150 ग्रेन मेडिकेशंस दे दो। नॉर्मली ऐसे कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करते, बट दिस इज जस्ट अजम्पटिव कि ऐसा हुआ तो क्या करोगे। The medication label reads 0.4 milligram mg per tablet. डॉक्टर ने बोला एमसीजी इतने देने हैं, पर जो आपने टैबलेट मेडिकेशन लेबल रीड किया तो उसमें लिखा था एक टैबलेट में 0.4 mg ड्रग है। द नर्स प्रिपेयर्स टू एडमिनिस्टर हाउ मेनी टैबलेट्स टू द क्लाइंट। अभी नर्स कितनी टैबलेट्स देगी पेशेंट को, सो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 by 150 gr is equals to 0.4 mg only. फॉर एग्जाम्पल इन गुजराती वी यूज टू स्पीक कि एक मण, तो आपको एक मण मतलब कितना होता है वो आपको पता है, कितना होता है? 20 किलो। yes 20 kgs. so आपको वो पता होगा तो that would be very easy. so
you would know that you need to administer one tablet. अगर आपको simply पता होगा कि 1/150 GR is equals to 0.4 mg ही होता है, so आपको कोई calculation की करने की जरूरत ही नहीं है. You will directly administer one tablet because उसमें भी 0.4 है और इसका मतलब भी 0.4 ही होता है. Otherwise use the ratio and proportion formula. आपको ये नहीं पता तो ये फॉर्मूला यूज करके आप कर सकते हो. एंड रिकॉल दैट 1 GR इज इक्वल्स टू 60 mg. एक GR का मतलब है 60 mg. 1 GR इज इक्वल्स टू 60 mg. सो 1/50 GR इज इक्वल्स टू हाउ मेनी mg. तो आप कैसे करोगे? 1/50 GR इज इक्वल्स टू हाउ मेनी mg. सो यू विल डू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस. इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे. सो इट वुड बी लाइक 50 डिवाइड बाय 60 करोगे आप. सो दिस वुड बी द आंसर कि 0.4 आंसर आएगा. नोट दैट ग्रेन इज मेजर्ड इन एपोथेकेरी सिस्टम बट नाइट्रोग्लिसरीन इज वन मेडिकेशन दैट यू मे फाइंड प्रिस्क्राइब्ड इन द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. सो आपको ग्रेन में कभी भी नाइट्रोग्लिसरीन नहीं पूछेंगे, वो ऑलवेज आपको इस तरीके से पूछेंगे, बट यू शुड नो. सो आपने ये फॉर्मूला यूज किया, हैंड, व्हीकल, डिजायर्ड डोज और अननोन. सो ऑन हैंड आपके पास 1 GR था, व्हीकल 60 mg था, बिकॉज हमें पता था कि 1 GR इज इक्वल टू 60 mg. और आपको डॉक्टर ने बोला है 1/50 GR इंटू x mg. सो जो फॉर्मूला था मैंने बोला कि 1 और 50 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. सो 60 डिवाइड बाय 150. सॉरी, आई हैव रिटन 50. 150. सो आंसर इज 0. सो दिस इज हाउ दे विल आस्क यू. दिस इज नॉट फॉर एग्जामिनेशन. ये सिर्फ आपको एक सिंपली बताया है कि एपोथेकेरी में से अगर मैट्रिक यूनिट में पूछे तो कैसे होगा. यू वर्ल्ड में भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे और एग्जाम में भी नहीं होंगे. हाँ, बट यू वर्ल्ड में इस तरह के क्वेश्चंस होंगे. इन एग्जामिनेशन यू विल नॉट फाइंड एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट यू वर्ल्ड सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन होंगे. D/H into V वाले क्वेश्चंस होंगे. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. यस और नो? ओके. फॉर्मूला याद रखना है. देयर आर मेनली 3 फॉर्मूलाज इन होल चैप्टर. पहला फॉर्मूला हमने ऑलरेडी स्टडी कर दिया है. सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, तभी आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. ओके. सो next is medication labels. What is that? A medication label always contains the generic name and may contain the trade name of the medication. जब भी आप कोई मेडिसिन का लेबल पढ़ोगे तो उस पे ऑलवेज जेनेरिक नेम लिखा होगा. लाइक आप देखते हो कि एमिसेट दैट इज ट्रेड नेम. उसका जेनेरिक नेम क्या होगा? Ondansetron. ऑन्डेंसेट्रोन. एमिसेट वो ब्रांड नेम है, पर ऑन्डेंसेट्रोन उसका जेनेरिक नेम है, वो ड्रग का नेम है. तो जब भी आप मेडिकेशंस के लेबल पढ़ोगे तो ऑलवेज वो जेनेरिक नेम में ही लिखा होगा और उसमें ट्रेड नेम भी लिखा होता है, बट आपको ऑलवेज जेनेरिक नेम्स याद रखने हैं. ऑलवेज चेक द एक्सपिरेशन डेट ऑन द मेडिकेशन लेबल. जब भी किसी पेशेंट को मेडिसिन एडमिनिस्टर करो तो उसकी एक्सपायरी डेट भी चेक कर लो. जो वायल, एम्प्यूल, टैबलेट फॉर्म है उसकी एक्सपायरी डेट भी पहले चेक करो. This is really important point. The NCLEX test you on the generic names of medication. The trade name will not be presented on the exam for most medication. So be sure to learn the medication by their generic names. However, you will probably still encounter the trade names in the clinical settings. आप कभी भी एग्जाम में फार्मेकोलॉजी के क्वेश्चंस सॉल्व करोगे सो ऑलवेज उसमें जेनेरिक नेम ही लिखे होंगे, लाइक ऑन्डेंसेट्रोन, पेंटोप्राजोल, देन एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, ऐसे ही नेम्स लिखे होंगे. ट्रेड नेम्स नहीं लिखे होंगे. वो जेनेरिक नेम से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देंगे, फार्मेकोलॉजी में होंगे या मेडिकेशन ड्रग डोज कैलकुलेशंस में होंगे. हाँ, पर अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग्स, क्लिनिकल सेटिंग्स में वर्क कर रहे हो तब आपको ब्रांड नेम भी उसके पता होने चाहिए. लाइक एमसेट इज ऑन्डेंसेट्रोन, देन लेसिक्स दैट इज ब्रांड नेम और उसका जेनेरिक नेम क्या है? फ्यूसेमाइड. फ्यूसेमाइड. यस, तो आपको पता होना चाहिए. डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि गिव फ्यूसेमाइड दिस मच अमाउंट टू द पेशेंट, पर आपको तो पता होना चाहिए ना कि ये लेसिक्स ही फ्यूसेमाइड है. तो ट्रेड नेम्स आप जब हॉस्पिटल में वर्क करोगे तब आप उसको एनकाउंटर करोगे और आपको पता होना चाहिए. बट एग्जाम में आपको फ्यूसेमाइड वैसे ही लिखा होगा. एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लिखा होगा कि लेसिक्स. अंडरस्टूड? Yes. Okay, so let's do a quick revision of our today's class. आज हमने क्या देखा?
तो आज हमने मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन देखा कि मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते पहले, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन हमें क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए. सो दिस इज द बॉक्स. यू शुड नो अबाउट ऑल दिस रूल्स कि जब भी आप किसी पेशेंट को मेडिसिन दो तो उसको पहले प्रिस्क्रिप्शन चेक करो. पेशेंट कोई पहले मेडिसिन ले रहा है, हर्बल सप्लीमेंट्स ले रहा है. मेडिकेशन रिकंसिलिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज दैट? रिकंसिलिएशन मीन्स રિપીટ કરવાનું કે પ્રીવિયસ જે મેડિકેશન ચાલે છે એ છે કે वी हैव टू डू द कंपैरिजन. डॉक्टर ने जो नया प्रिस्क्राइब किया है और पेशेंट ऑलरेडी पहले से ले रहा है, सो उस दोनों का कंपैरिजन करना है. कोई कॉमन ड्रग ना हो जाए, ओवरडोज ना हो जाए. सो दैट इज जब हम कंपैरिजन करते हैं दो चीज का, पेशेंट के प्रीवियस मेडिसिन का और डॉक्टर ने जो न्यू प्रिस्क्राइब किया है, दैट इज कॉल्ड एज मेडिकेशन रिकंसिलिएशन चेक. हम वो चेक करते हैं. सो वो सब हमें करना है. पेशेंट के राइट्स हमें ध्यान में रखना है. देर आर सर्टेन मोर राइट्स जो पेशेंट को नहीं पता है. लाइक पेशेंट के ऊपर रिसर्च हो रही हो तो उसको पता होना चाहिए, उसकी रिटन कंसेंट होनी चाहिए, उसको एक्स्ट्रा लाइक सपोर्टिव थेरापी भी मिलनी चाहिए, उसको इन्फॉर्म होना चाहिए कि इट इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च स्टडी. तो ये सारे राइट्स आप पेशेंट को बोलोगे. सो यू विल डू ऑल दिस थिंग्स. लास्ट में इवेल्युएशन करोगे, डॉक्यूमेंटेशन करोगे. सो रिमेंबर दिस steps while doing medication administration. फिर medication measurement systems. So there are mainly two systems. Which are they? Metric system and apothecary और household system. कौन सी हॉस्पिटल सेटिंग्स में कॉमन यूज होती है? metric, मैट्रिक सिस्टम्स. यस. सो उसमें लीटर, मीटर और ग्राम्स में होगा. ग्राम्स की जगह मतलब केजी, मिलीग्राम, एमसीजी वो सब उसके ही यूनिट है. सो ये सारे मीटर, लीटर, एमएल, केजी, जी, एमजी, एमसीजी, मिली इक्विवेलेंट वो सब उसमें ही यूज होता है. एपोथेकेरी में वो नॉर्मली यूज नहीं होता. यस, देर आर टू टाइप्स ऑफ हाउस होल्ड सिस्टम्स. वन इज वेरी बेसिक जो बिल्कुल यूज नहीं होता और वन कभी कभार यूज हो जाता है. सो ग्रेन, रैम एंड मिनिम वो कभी यूज नहीं होता, वो कॉमनली यूज नहीं होता. जो कॉमनली यूज होता है फ्रॉम द हाउस होल्ड सिस्टम्स आर कभी कभार हो जाएगा. सो ड्रॉप, टीस्पून, टेबल स्पून, आउंस, पाइंट एंड कप. आपको उतना पता होना चाहिए. जैसे हमने वो क्वेश्चन बोला था ग्राम का. सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 60 mg. वो कैसे पता चला? बिकॉज वी नो 1 टीस्पून इज इक्वल टू 15 ml. वो हमें पता था. वी जस्ट वी हमें उतना पता था कि ये उसका ऐसा ही होता है. तभी हम इजीली कर पाएंगे कन्वर्जन बिटवीन टू सिस्टम्स. सो 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ml 5 ml. 1 tablespoon is equals to 50 ml 15 ml and 1 ounce is equals to 30 ml 30 ml. 1 kg is equals to how many pound? 2.2 pound. Yes. So remember these things. ये आपके लिए बहुत important है. NCLEX will never ask you the question for the conversion between the apothecary system and metric system. दोनों के बीच का conversion नहीं होगा. However, sometimes ये वाले systems आ सकते हैं. टीस्पून, टेबल स्पून, वो ग्रेन, रैम वाले तो कभी नहीं आएंगे. ये sometimes आपको आ सकते हैं इन क्लिनिकल सिस्टम्स. एग्जाम में नहीं आएंगे. क्लिनिकल सिस्टम में ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर ने टी स्पून, टेबल स्पून में लिख दिया है और आपको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी. एग्जाम में वो कभी नहीं पूछेंगे. common other units are milli equivalent and unit. We know कि sometimes some potassium and electrolytes में milli equivalent लिखा होता है और another some medications like heparin, sodium, penicillin, insulin उसमें units में लिखा होगा. So these are other two additional units for measuring the drug और medication. फिर हमने conversion देखा. conversion में दो ही चीज याद रखनी है. whenever you are converting larger unit to smaller unit तो क्या करना है आपको? move 3 decimal right side move the decimal point 3 decimal point towards the right. or another method is multiply multiply by by 1000. अगर स्मॉलर यूनिट से हमें लार्जर यूनिट में कन्वर्जन करना है तो move 3 decimal point left yes, move 3 decimal points towards the left. or another method is divide by 1000. So this is how you have to do the conversion. उसका हमने एक एग्जांपल भी देखा था. फिर conversion between two systems हमने देखा था. नॉर्मली वो नहीं पूछते बट कैसे करना है वो ऑलरेडी हमने 14.5 बॉक्स में देख लिया था.
the formula for the to solve such kind of problem. So what is that formula? अगर आपको फाइंड आउट करना है कि कितने ml मेडिसिन देनी है, कितनी टैबलेट्स देनी है, कितनी कैप्सूल देनी है, ऐसा क्वेश्चन हो, तो व्हाट इज द फॉर्मूला दैट यू विल यूज? D by H into V. D by H into V. What is D? Desired. Desired. So what does that mean? Desired means प्रिस्क्राइब डोज जो डॉक्टर ने Dose जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है. Yes. What is H? on hand. On hand. What is that? On hand means अपने पास जो मतलब डोज में मतलब हाँ, जो अवेलेबल फॉर्म में है, लाइक कौन वो जो आपके पास सिरप की बोतल है या मेडिसिन है, तो उसमें क्या है, अवेलेबल फॉर्म क्या है, हमारे हाथ में क्या है. एंड व्हाट इज वी? Volume. व्हीकल. व्हीकल मीन्स ml. कौन से फॉर्म में है वो मेडिकेशन, इन टैबलेट, इन Tablet. लिक्विड. यस. सो लिक्विड में होगी तो ml होगा, टैबलेट में होगी तो टैबलेट होगा, कैप्सूल फॉर्म में होगी तो कैप्सूल होगा. सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ वी. कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले यू हैव टू डू द कन्वर्जन. अगर दोनों यूनिट अलग है तो आपको पहले कन्वर्जन करना होगा. यू कैन नॉट राइट लाइक दिस. एक आपको ग्राम में दिया है, एक आपको ऐसे ग्राम में दिया है 2 ग्राम, और आपने नीचे लिखा है 400 mg. सो यू कैन नॉट डू सम्स लाइक दिस. आपने डी की वैल्यू ऐसे लिख दी और एच की वैल्यू ऐसे लिख दी. इट इज नॉट पॉसिबल. यू हैव टू कन्वर्ट द प्रिस्क्राइब्ड डोज इनटू अवेलेबल फॉर्म, क्योंकि हम अवेलेबल चेंज नहीं कर सकते, वो जैसा है वैसा ही रहेगा. सो हम क्या कर सकते हैं, जो भी प्रिस्क्राइब है उसको अवेलेबल में कन्वर्ट करना होगा. सो यू हैव टू ऑलवेज कन्वर्ट द डी वैल्यू. डी वैल्यू को एच वाले यूनिट में हमें कन्वर्ट करना होगा ऑलवेज. सो कन्वर्जन इज द फर्स्ट स्टेप. फिर मेडिकेशन लेबल्स. जब भी आप किसी भी पेशेंट को मेडिकेशन दो तो आपको कौन सा नेम याद रखना है? Generic. जेनेरिक नेम ऑलवेज, बिकॉज आपको एग्जाम में भी वो जेनेरिक नेम से ही क्वेश्चन पूछेंगे. ट्रेड नेम आपके लिए क्या कब काम लगेगा? क्लिनिकल सेटिंग. यस, इन क्लिनिकल सेटिंग्स. जब आप जॉब कर रहे होगे तो अब आपको ट्रेड नेम से वो ड्रग्स याद रहेगी, बट एग्जाम में आपको जेनेरिक नेम से ही पूछेंगे. जब भी आप मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हो तो आपको ट्रेड नेम मतलब जेनेरिक नेम उस पर रीड करना है. और दूसरा क्या चेक करना है? Expiry date. एक्सपायरी डेट. यस, तो एक्सपायरेशन डेट भी हमें चेक करनी है. अगर मेडिसिन एक्सपायर हो गई है तो हम नहीं दे सकते पेशेंट को. तो यू हैव टू चेक ऑल दिस थिंग्स. वो जो फॉर्मूला है जो हमने आज स्टडी किया वो आपको याद रखना है. टुमारो वी विल डू 2 more क्वेश्चंस. 2 और हम सम्स करेंगे ये फॉर्मूला से. सो रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, राइट डाउन दिस फॉर्मूला. यू वर्ल्ड जब सॉल्व करोगे तभी ये फॉर्मूला काम लगेगा. इन मेन एग्जामिनेशन इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. हाँ, बट अगर आप हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो तब आपको ये शायद काम लग सकता है. तो रिमेम्बर दिस फॉर्मूला. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. एनी डाउट? Okay. Harsh, do you understand today's lecture? Yes, ma'am. Very well. Yes. Okay. So see you tomorrow at 9 a.m. Thank you. Mhm. Thank you, ma'am.